a thrilling 32 games, it's down to the Super 8s. We witnessed a fifer from an ageless sprinter. A majestic 100 off Farhan. Return to form from a maestro. Bada shot, tagada shot. And nail-biter finishes. Sahibzada Farhan in sublime form. Yet the action has just got more powerful. AH Group presents Jazz Super 4G National T20 is ready with Peshawar taking on Lahore Whites. Peshawar topped the table with resounding performances from Sahibzada Farhan and skipper Iftikhar Ahmed. Slog this time will earn a maximum. Ahmed Shahzad is in the form of his life, smacking 350s in all three of his outings. Lahore Whites are sure to bank on his innings if a revenge from their earlier loss to Peshawar is viable. Peshawar will be seeking to keep their winning mantra in check. Good afternoon and welcome once again from the National Bank Stadium. It is AH Group presents Jazz Super 4G National T20 and it's down to the big boys now. Peshawar versus Lahore Whites is the first encounter today. And a quick look at what's going to happen later in the evening. Lahore B, whereas Blues will be taking on Karachi Whites. That's also one big encounter. So after 18 teams, 10 have gone home and it's down to Super 8. तो सारे एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं and the teams arrived a little while ago. Peshawar and of course Lahore all geared up for this big encounter. Everyone will be playing each other at least once in this Super 8, so they have more opportunities. It's not about the knockout stage. We'll go down to the semi-finals later on in the first week of December. I've got Salman but alongside me. काफी जबरदस्त मुकाबले रहे, कुछ lopsided रहे, कुछ नई टीमें थीं. 18 में से छांटी हो गई और फिल्टर आउट होके आ गई. ऐसी 8 टीमें जिनका अब तगड़ा मुकाबला होगा. देखिए डेफिनेटली इस फॉर्मेट में कंपटीशन बिल्ड होता है, कंस्ट्रक्ट होता है और आई थिंक वो हुआ है हमारे सामने. मैचेस बेहतर से बेहतर होते गए हैं. लास्ट ओवर फिनिशेस हुई हैं, फिर लास्ट बॉल फिनिशेस भी हुई हैं. सो वी हैव सीन थिंग्स इंप्रूव एंड नाउ वी हैव कम टू सुपर 8 वेयर एज यू सेड एवरीबॉडी प्लेज वंस एवरीवन. तो उसमें जो भी बन के आएगा, जीत के चैंपियन बनेगा, वो वर्दी चैंपियन होगा बिकॉज आपने सबसे मुकाबला किया. इसे बर्नआउट का कितना डर होगा? कितने मैचेस खेलने हैं अब लगातार? एवरीडे आपको खेलना है T20, कोई गैप्स नहीं होंगे. Of course, they are professionals, but it will have a toll on it. देखिए, it is for the player to be very clear in communication with the doctor and with his teammates, ताकि वो unfair ना हो if he is not fully fit. तो I think the best way is to communicate it to the people who matter. और फिर अगर एक player ऐसा है जिसमें थोड़ा सा कह लीजिए थका हुआ है लेकिन उसकी presence matter करती है, तो किस तरह उसे चलाना है, that is where the game awareness or the tactical awareness of the captain comes up. So I think it will be interesting to see. बहरहाल it's a T20 competition, 2 दिन का रेस्ट हुआ है, रात को भी मैचेस हैं. I think weather is good enough to play it straight, मतलब सारा खेलें. हमें इस टूर्नामेंट में 248 का स्कोर भी दिखा है, हमें 59 का भी दिखा है. ओवरऑल व्हेन यू एक लुक एट इट, एक जायजा लेते हैं, यू थिंक कि ये बॉलर डोमिनेंट या बैटिंग डोमिनेंट रहा है टूर्नामेंट, या आप कहेंगे कि दोनों के लिए इक्वल रहा? देखिए प्रीटी मच बैलेंस्ड मैं कहूँगा इसे, क्योंकि इसमें रन्स भी दिखे हैं और इसमें बहुत जल्दी विकेटें गिरती भी दिखी हैं. लेकिन अब जो प्रेशर गेम्स शुरू होंगे यहाँ से हमें पता चलेगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि रेपुटेशन पे कैप्टन टॉस जीत कर बाद में बैटिंग करते रहे हैं. बट द टीम्स दैट हैव एक्सपीरियंस एंड गुड प्लेयर्स वो पहले खेल के भी जीती हैं. सो रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रेंडी नहीं है जिस तरह कि आपका डिसीजन मेकिंग ट्रेंडी है. I don't want to put you in a spot because इतना आसान नहीं होता, but any player that stood out to you during the tournament, बैटिंग में, बॉलिंग में कोई नजर आया होगा? I think अगर हम let's not talk about the big guns, हमें पता है फरहान, साहिबजादा फरहान ने रन्स किया, मशदार टॉप कर रहे हैं, people have been playing well, but if we talk about the newest ones, I think that leg spinner from Karachi, Arif Yaqub has done wonderfully well. उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बैटल हार्डन लगता है सारी ग्रासरूट की क्रिकेट खेली है. इसी तरह couple of fast bowlers from the teams which came after decade, डेरा मराज जमाली, लाड़काना, बिग हाइट, अच्छा बॉल स्विंग करते हैं, अच्छा इजी रिपीटेबल एक्शन है. तो इनकरेजिंग साइंस हैं इनकी तरफ से अगर देखा जाए तो. अच्छा जी, कुछ आज की टीमों के बारे में बात करते हैं. पेशावर है और लाहौर वाइट्स है. पेशावर ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी. ऑफ कोर्स वीकर ओपोनेंट था, लेकिन 240 245 का स्कोर उन्होंने जड़ दिया था. ओवरऑल उसमें ज़्यादा बैटिंग टेस्ट तो हुई नहीं. साहिबजादा और इफ्तिखार ने सारा काम कर दिया था. बट हाउ डू यू सी देम एज अ टीम? I think they are a team which knows winning.
और प्रेशर मैचेस को अच्छा खेलते हैं। टैक्टिकली अगर हम देखें, अगर हम ऑन द गो कैप्टनसी की जो इंस्टिंक्टिव चीज़ होती है उसको देखें तो डेफिनेटली पेशावर स्टैंड आउट करती है अमंग ऑल द टीम्स। और जो आपने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है कि इफ्तिखार एंड साहिबजादा फरहान, दूसरी तरफ भी यही है, अहमद शहजाद ऑल द वे। मैं यही आने वाला था कि इनके मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज ही नहीं हुए, यस, टू एनी सिचुएशन जहां पर कोई थ्रिलिंग वहां पे सिचुएशन हो। सो अगेन बिग गेम हैज अराइव्ड। जिसके भी प्लेयर्स ने अंडर प्रेशर मोमेंट्स को जीता, आई थिंक दे विल विन द गेम। लाहौर वाइट्स को कैसे देखते हैं एज अ बैलेंस्ड ओपोनेंट टू दिस पेशावर साइड? I think Lahore Whites has the names, but they have to fire. Let's say Umar Akmal, he's been there. We all know कि वो मैच जिता सकते हैं, लेकिन then he has to win a game. तो I think those reputations need to start firing. दूसरी तरफ फिनिश में भी आप देख लें, इफ्तिखार आते हैं, he's doing a great job. साहिबजादा फरहान है, वो बैट थ्रू भी करते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से करते हैं। नबी गुल एक यंगस्टर है जो ओकेजनली अच्छा करते हैं। बॉलर्स आर डूइंग वेल। लाहौर वाइट्स में दे नीड द बैटर्स टू फायर। साद खान पिछला मैच अच्छा खेले, साद नसीम एज अ कैप्टन ही हैज बीन गुड, फॉर्म में भी रहे हैं, बट आई थिंक द मेन स्टेक होल्डर्स, बिग नेम्स, दे नीड टू फायर एक्सेप्ट अहमद शहजाद। चलिए, आज इन ब्रांड न्यू पिच यूज हो रही है, पिच नंबर 8। कैसा खेलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या रीड करते हैं पिच पे, शाह फैसल को ज्वाइन करते हैं। The excitement is going to go up a notch because it's the start of Super 8, and for that we got a brand new pitch that hasn't been used in this competition before, and by the looks of it, I think it looks the best pitch so far that we have used. If you look closely, you see it's got a little green tinge to it, and that runs all across the pitch. Pretty even covering of that grass, but the pitch is rolled in. It's slightly grayer in color. It looks harder as well. So which means that the ball will carry nicely. Bowlers will have something as well. But you can see the full range of strokes from the batters because this looks like an absolute belter. And we should have some cracking games. कैसा खेलेगा पिच ये तो वक्त बताएगा। नंबर 7 पिच जो है, जो इससे थोड़े 4-5 पिच दूर है, वो अभी तक बेस्ट नजर आया है। 8 इस साइड पे है, विच इज क्लोजर 2 and 6 आई थिंक। स्क्वायर पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहती हैं। कैसा देख रहे हैं ओवरऑल पिचेस ने जो बिहेव किया है यहाँ पर? देखिए, इट कैन डिफर, डिपेंड्स कि आपने प्रिपेयर कैसा किया। यहाँ पर 2 दिन थे ग्राउंड्समैन के पास और उन्होंने पिछले मैचेस में, स्पेशली जो लास्ट डे था, दे डिड अ वंडरफुल जॉब। बड़ा अच्छा पिच था, बैटर बॉलर को इक्वली सपोर्ट करा था। यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसमें बेल्टर हमें बताया गया है, थोड़ा ग्रे है, थोड़ा ग्रास है, रोल्ड इन है प्रॉबली, और डिपेंड करेगा अगर ये पिच अब्रेसिव है देन दोज चेंजेस ऑफ पेस एंड ग्रिप, स्पिनर्स का ग्रिप होता है तो फिर इट माइट बी डिफरेंट, लेकिन अगर नहीं होगा देन ऑब्वियसली जैसे शाहजी ने कहा है तो फिर बेल्टर ही होगा। चलिए, 2 मैचेस हैं इस पिच पे, याद रहे, देखें कि कैसा चलता है। टॉस का टाइम आ गया है। यूजुअली यहाँ पे लोग चेस करना प्रेफर करते हैं। देखते हैं कि अली यूनुस के साथ आज कप्तान क्या फैसला करते हैं। We're coming up to toss time. It's Lahore Whites taking on Peshawar here at National Cricket Stadium. Now, I've got the 2 captains alongside me. Saad Naseem for Lahore Whites, Iftikhar Ahmed for Peshawar. Professor Javed Malik is our match referee. And it seems like Iftikhar is going to spin it. Tail. Tails is the call. It's a head. Iftikhar toss जीत गए, क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे। थोड़ा ऐसे थोड़ा ग्रीन सा लग रहा है, थोड़ी सी हल्की ग्रास है तो उससे थोड़ा फायदा लेना है। पहली बार ये पिच यूज हो रहा है, आप क्या चाहेंगे कि कितने स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करें लाहौर को? देखो, एक माइंड नहीं बनाना चाहिए, जितना भी हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि उसको चेस करें। आपकी टीम न्यूज? एक इमरान खान की जगह नियाज आया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। टॉस हार गए हैं साथ, आप जीते तो क्या इरादे थे? जी, हमारा भी यही प्लान था कि टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते, क्योंकि फ्रेश पिच है, इसका कुछ स्लो साइड पे लग रहा था, लेकिन टॉस तो हाथ में नहीं है, लेकिन बैटिंग आगे तो कोशिश करेंगे कि 150 to 160 रन करें। अच्छी जीत हासिल की, आखिरी मैच में मोमेंटम आपकी तरफ है, तो आप कॉन्फिडेंट है एज अ कैप्टन? जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त। हम 2 लास्ट जो मैच जीते हैं, जैसे अहमद शहजाद ऊपर से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, कोशिश यही करेंगे उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें और ये वाला मैच भी जीतें। अहमद शहजाद का आपने जिक्र किया, लकी होता है कैप्टन के एक सीनियर मेंबर इतनी अच्छी फॉर्म में हो और अच्छा फ्लेयर दिखा रहा हो। जी बिल्कुल, वो बड़ा कमिटेड होकर खेल रहे हैं, फील्डिंग में जान मार रहे हैं और बैटिंग जैसे उन्होंने 3 मैच खेले हैं, टीम को फ्रंट से लीड करके वो लेके गए हैं, मैच जितवाए हैं उन्होंने। और टीम न्यूज़ आज की? सेम टीम खेल रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Right, the news from the toss is that Peshawar has won the toss and they will be bowling first.
चलिए एक नजर डालते हैं आज के 11 पर। अभी इफ्तिखार ने बताया कि उन्होंने एक चेंज किया है। लाहौर वाइट्स की पहले बात करेंगे क्योंकि इनकी बैटिंग आ गई है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये लोग अभी तक काफी हैवी है, टॉप हैवी हैं, अहमद शहजाद से लेके साद नसीम तक। देखिए बॉलिंग साइड में यंगस्टर्स हैं, कामरान अफजल इसी टूर्नामेंट में डेब्यू हुआ है, मुनीब आसिफ का भी डेब्यू हुआ है। ये दो जो बॉलर हैं जिन्होंने बॉलिंग करनी है। देन आमिर खान इज बॉलिंग वेल अलॉन्ग विद अहमद दानियाल। इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों का स्पेल कैसा है। और मोहम्मद इरफान एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, 300 से ज़्यादा विकेट्स हैं। अहमद शहजाद की फॉर्म बहुत मैटर करेगी। कीपर रेगुलर नहीं है, वो कितना अच्छा करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड दिस मैन उमर अकमल, ही नीड्स टू फायर। और साद खान वी नो ही फिनिश द गेम रियली वेल। सो अच्छी फाइट पुट अप कर सकते हैं, बट दे नीड टू मीट देयर पोटेंशियल। इमरान खान सीनियर को आज नहीं लिया टीम में, मुझे मालूम नहीं कि इज ही नॉट फिट कंप्लीटली, बट नियाज खान को उनकी जगह लाया है। बिग कॉल इन अ सुपर हिट। हाँ देखिए एक्सपीरियंस इमरान खान है, बहुत ही स्किलफुल बॉलर है। और नियाज भी एज अ यंगस्टर मैं कहूँगा कि ही इज इम्प्रेस्ड एवरीबडी दिस सीजन, ही इज डन वेल। आजम खान ने लेफ्ट आर्म स्पिन में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। मोहम्मद इमरान हैज बीन अमंग द विकेट्स। सो दे हैव अ साइड व्हिच हैज बीन परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। इनके पास भी टॉप 4 बैटर्स हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स, बॉलिंग लाइन काफी लंबी है। मोहम्मद इमरान, अब्बास आफरीदी, आजम खान, नियाज खान, आमिर अजमत, इफ्तिखार खुद भी। सो he's got plenty of options available. Anyway, आज की प्रेडिक्शन अब क्या है आपके जहन में? पेशावर चेस करना चाहता है, ऑफ कोर्स चेस ही करते हैं। I think let's say 60-40 to Peshawar because they've got what they wanted। और हमने देखा है कि वो किस तरह एक जेल होकर टीम खेल रही है। सीजन का मोमेंटम भी बड़ा काउंट करता है। और जब फाइनल्स विनिंग माइंडसेट होता है, अपने नॉकआउट्स जीते होते हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। फॉर लाहौर दे हैव टू प्ले एक्सेप्शनली वेल। ठीक है सलमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट्स टाइम फॉर अस टू नाउ एंजॉयिंग द एक्शन आउट देयर। इट्स सुपर 8 टाइम एंड इट्स मैच 1 ऑफ द डे। फैंटास्टिक फ्राइडे आफ्टरनून कराची में, जहां पर तेज धूप निकली हुई है और उसमें खूब भली मालूम हो रही है। पेशावर की येलो किट पहने हुए ये साइड जो कि टॉस जीतने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फैसला नजर आता है। पहले बॉलिंग करने के लिए उतरे हैं, फिट और टॉप परफॉर्मेंस के साथ आए एक मरतबा फिर। जो पिछले चंद सीजन्स में इन्होंने धाक बिठाई है अपनी परफॉर्मेंस टैलेंट की, वो एक मरतबा फिर उसको कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं T20 फॉर्मेट में भी और एक अगले सीजन में। दूसरी तरफ मौजूद हैं अहमद शहजाद, जिन्होंने अपने आप को समझ लीजिए नए सिरे से दरियाफ्त किया है इस सीजन में। 50s पे 50 बना रहे हैं, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड पे अवार्ड हासिल कर रहे हैं। अखलाक के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को रिडीम कर सकें ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनकी टीम सुपर 8 में पहुंच पाई है। एक स्ट्रॉन्ग टीम है लाहौर की, जो कि आप जानते हैं कि अब तक मुख्तलिफ मतोजर के साथ गुजरी है। इनके लिए कोई आसान सफ़र नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। स्ट्राइक बनाएंगे अखलाक, जबकि दूसरी जानिब एक तब्दीली का फैसला किया है पेशावर ने और नौजवान नियाज को खिलाने के लिए गए हैं। 244 मैचेस, शानदार एवरेज जो कि 30 की T20 में माने रखेगी। और ये सीज़न उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो टॉक ऑफ द टाउन तो बने हैं। लेकिन सुपर 8 के साथ ये शुरुआत होती है 7 मुसलसल मैचेस की और आइडियली सेमीफाइनल और फिर फाइनल की, जहाँ पर वो अपना इम्पैक्ट मजीद उजागर कर सकते हैं। उनके सामने मौजूद हैं नौजवान इमरान, जो कि बाएं हाथ से गेंद करने के लिए आएंगे। अपनी स्लो वन और स्लो बाउंसर के साथ वो बैट्समैन को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योर बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है और शानदार बैटिंग को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस हैं। पेशावर ने बॉलिंग करने का फैसला किया है। ये नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला सुपर 8 का पहला मुकाबला है और इसी के साथ इस सिलसिले की शुरुआत होगी, जो कि सिर्फ एक दिन का वक्फा आएगा और उसके साथ ये तमाम क्रिकेट आप तक पहुँचती रहेगी 10 दिसंबर के होने वाले फाइनल के लिए। एक स्लिप के साथ बॉलिंग की शुरुआत करेंगे राशिद रियाज, जो कि मौजूद हैं इस वक्त दूसरे एंड पे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर अंपायर तैयार हैं। पॉसिबली अब्दुल मुकीद के साथ वो स्टंप्स की अलाइनमेंट या फिर बैट्समैन के लिए साइड स्क्रीन के मसाइल को ठीक करना चाहते हैं। और यह हमें मौका देता है कि हम स्मार्ट और हैंडसम और फुल नींद पूरी करने वाले शाह फैसल को वेलकम कर लें कॉम बॉक्स में। कैसे चल रहा है सफर शाह फैसल? बहुत शुक्रिया अकील जी, बहुत ज़बरदस्त। कराची का मौसम शानदार और शानदार क्रिकेट की तैयारी में थोड़ा सा क्लॉक से पहले सब चीज़ें तैयार हो गई थी, इसीलिए इजाफी वेट करना पड़ा, लेकिन अब वो वक्त पूरा हो गया है, इसलिए अंपायर्स खेल का इशारा करेंगे। एक स्लिप, 4 फील्डर ऑफ साइड पर और ज़बरदस्त कंपटीशन का आगाज। सुपर 8 डाउन द लेग साइड, जो कि उनका कभी खिलाड़ी ने सोचा कि लग के गई, कभी उन्होंने सोचा कि नहीं। हारिस ने टेक अच्छी की है और अखलाक उनको बावर करवा रहे हैं खुद के ये गेंद उनके बाजू से ऊपर लग के गई है, जिसके बायस ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब्दुल मुकीद ने भी लगता है कि सेंसिबल फैसला दिया। वेरी हाई अप इन द आर्म शाह फैसल।
थोड़ी सी बॉल मूव हुई और इस एंगल से नहीं, पहले एंगल से लगा कि जो उनका एल्बो का बैंड है काले रंग का उसके आसपास लगी, और यही इशारा भी किया था अखलाक ने अपील के फौरन बाद। लेकिन अच्छा बाउंस और मूवमेंट भी मिली यहाँ इमरान को। फर्स्ट रन ऑफ द सुपर 8 फॉर लाहौर ब्लूज। आपने अभी कुछ देर पहले पिच रिपोर्ट दी है और एक टिंज ऑफ ग्रीन नजर आ रहा है जो कि पैचेस की फॉर्म में है, जो कि कांस्टेंट किस्म के पैचेस हैं। कराची जैसी पिच पे शाह फैसल आमतौर पर इस अंदाज की पिच जब मिलती है जिसमें कुछ घास मौजूद हो तो कुछ ज्यादा जान सी आ जाती है। तो आपके ख्याल के मुताबिक आज ज्यादा बेहतर रन बने चाहिए? अभी तक तो अच्छा बाउंस लगा। बॉल तो कैरी करेगा, लेकिन इसमें एक डाउट है, थोड़ा सा इसका कलर डार्क था और ऐसा लगा कि जो एब्रेसिव नेचर है शायद अंडर लाइट बॉल ज्यादा स्लाइड करेगा और अच्छा बल्ले पे आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पिच है, ऐसी पिच हमने इस टूर्नामेंट में देखी नहीं अभी तक। बड़ा मार्का है अहमद शहजाद के खिलाफ गेंद करने के लिए इमरान के पास, जो कि अब तक अच्छा सफर जारी रख रहे हैं। और इमरान के पास अब जो जिम्मेदारी आ गई है वो फास्ट बॉलिंग के स्पेयर हेड हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान सीनियर जो कि अदरवाइज शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस होते, वो अपने बेहतर ना होने की वजह से इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। नियाज खान उनके बूट्स को फिल करने के लिए आएंगे और इमरान अचानक से, वैसे तो नौजवान वाले हैं और कहने को भी जूनियर हैं, लेकिन सीनियर वाला उहदा मिल जाएगा इनको शाह फैसल। जी बिल्कुल, आपने अच्छा समअप किया और इम्प्रूव्ड बॉलर लगे हैं इस सीजन। चौड़े शाने हैं और गेंद को पटकते हैं पिच पे, अच्छा बाउंस हासिल करते हैं। पहले इनकी ज्यादातर शोहरत जो है वो चेंज ऑफ पेस और स्लो डिलीवरीज थी, डेथ बॉलिंग में महारत रखते थे। लेकिन अब इनिंग्स के आगाज में मिडल ओवर्स कहीं पे भी अपने कप्तान के लिए जॉब एक सरंजाम दे सकते हैं। थोड़ी सी अभी तक मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सके, दो गेंदें लेग स्टंप से बाहर की जानिब निकल गई। राइट इनटू द ब्लॉक होल करने की कोशिश, लेकिन अहमद शहजाद को भी पहला रन हासिल हो जाएगा। ये पेशावर की टीम शाह फैसल जो कि पिछले लगभग हम 8-9 साल से देख रहे हैं कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा के नाम से आए और अब भी इस सुपर 8 में इनकी 3 टीम्स इस सूबे से क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं, फाटा, एबटाबाद और पेशावर, जो कि हर तरफ से आपको बताता है कि टैलेंट की भरमार है। और जहां पे कराची जैसे रीजन से सिर्फ एक टीम पहुंच पाई, वहां पे लाहौर की गो के 2 टीम्स पहुंचने में कामयाब रही हैं। लेकिन बड़ा आपको हौसला अफजा रखता है ये टैलेंट और उसके साथ साथ बड़ा समझ बूझ रखने वाला और अपने आप को फिट रखने वाला ये एक ग्रुप लगता है, जो कि एक दूसरे के लिए खेलते हैं, एक दूसरे को बकअप करते नजर आते हैं। जी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया और 3 टीमें आपने जरूर कही कि नेशनल T20 में इस वक्त सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किए, लेकिन इनके बाकी प्लेयर्स गेस्ट प्लेयर के तौर पे भी खेल रहे हैं आगे पीछे से। और इसके अलावा एक बात है अखिल, मैं आपसे अभी जिक्र करूंगा इस बॉल के बाद, कि जो इस साल नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप हुई 3 डे की, वो भी पेशावर की टीम ने जीती। सो एज ग्रुप क्रिकेट में भी, यानी जो आप टैलेंट के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले की बात कर रहे थे, तो वो इतना ज़्यादा है कि एज ग्रुप में भी वो उन्होंने चैंपियनशिप जीती। उनके हेड कोच अहमद सैद हैं जो ख़ुद बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और एक सप्लाई लाइन चलती आ रही है। काफ़ी सारे यंग बैटर्स और बॉलर्स हैं उस लिस्ट में जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इस बारे में बात करेंगे अगले ओवर में। पहले ओवर का खात्मा 3 बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल, जहाँ तक हम ये इस रीजन की बात करें, ये 2014-15 से आपको राइज दिखता है जब ये बैक टू बैक पहली मरतबा जो नेशनल T20 कप्स हैं उसको जीतने में कामयाब रहे थे और उसके बाद से इन्होंने हर फॉर्मेट में अपने झंडे गाड़े हैं। और उसके साथ साथ जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी भी बात करेंगे जो इनकी टीम में मौजूद हैं। लाहौर वाइट्स की वो भी बड़ी टॉप की टीम है जो कि अगर अपने पोटेंशियल पे खेलने में कामयाब होती है तो वो ऑन पेपर, अगर हम अभी भी दोनों का एक तकाबली जायजा लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग समझी जाएगी। इनके पास सबसे बड़ा एसेट इस वक्त अहमद शहजाद की सूरत में है जो कि रेड हॉट फॉर्म में। फिर तैयब ताहिर इस कराची की तरह की पिचेस पे बड़ा अच्छा खेल रखते हैं। उमर अकमल का जो अब तक का तजर्बा है वही बड़ा माने रखता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये टॉकिंग अबाउट पेशावर, क्या लाए हम? जी बिल्कुल, और जो एक ज़बरदस्त चीज़ है जो इन टीमों में भी हमें नज़र आती है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। जो उनका स्ट्राइक रेट है वो बहुत तेज़ होता है, एग्रेसिव खेलते हैं। नियाज खान चौथा मैच अपना खेल रहे हैं, 3 खिलाड़ियों को अभी तक आउट किया है, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आए हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम कम मिलती हैं। जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, हमें इलियास खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे इस टीम में।
इमरान खान नहीं नज़र आ रहे। इससे किसका मतलब ये कि काफ़ी डेप्थ है इनकी क्रिकेट में और इनके पास ऑप्शंस बेशुमार हैं, चाहे वो यूथ क्रिकेट हो या सीनियर क्रिकेट हो, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप नेशनल टीम पे भी नज़र दौड़ाएं। विकेट मिल गई अहमद शहजाद को और निकालने की कोशिश की है, बड़ा चेस पड़ेगा वहां पर और अपनी पूरी कोशिश की है। लगता ही है कि वहां पर चौका रोकने के लिए अटेम्प्ट तो जबरदस्त की लेकिन रोक ना पाए। पहला चौका लाहौर के लिए सुपर 8 स्टेज का। अच्छा बाउंस और बॉल स्विंग हुआ, लेकिन लाजवाब टाइमिंग अहमद शहजाद की। जब आप देखेंगे रिप्ले तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भी उन्होंने जोर से हिट लगाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ टाइम किया। और आप आउटफील्ड की स्पीड देखें, नबी गुल की स्पीड भी काफी थी लेकिन बॉल की स्पीड उनसे ज्यादा थी। शानदार आगाज अहमद शहजाद के लिए। अब खेले हैं ऑन साइड पर और खींच के वहां पर मौजूद फील्डर के सिर के ऊपर से निकाल दिया। रिस्क लिया लेकिन पूरा रिवॉर्ड मिला अहमद शहजाद को। लाहौर की आमद हो चुकी है सुपर 8 में बैक टू बैक चौकों के साथ। अच्छा लेंथ को पिक किया एक मरतबा फिर। ज्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरी नहीं थी लेकिन बैक ऑफ अ लेंथ थी। और जैसा कि बाउंस की बात की तो बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं। अहमद शहजाद ने जल्दी से पोजीशन में आए और शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी लेकिन इनफ पावर थी शॉट में। कुछ देर के लिए उनका हल्क मुंह को आया होगा जिस बॉल फील्डर की डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से फील्डर की पहुंच से दूर थी। अच्छा आगाज अहमद का और खतरनाक अंदाज से एक मरतबा फिर खेले थे। अब ज्यादा दिल हलक में आया होगा, अगर पिछला पूरा नहीं आया था अहमद, लेकिन बड़ा जबरदस्त चेंज किया है नियाज ने कम बैक करने के लिए। 2 चौके कंसीड करने के बाद आसान नहीं था लेकिन फौरन अपने पेस को भी वेरी किया और साथ लेंथ को भी वो ट्रबल में दो चार करने में कामयाब रहे, शायद अहमद के माइंड को रीड करते हुए। बॉल में मूवमेंट भी थी लेकिन शायद थोड़ा सा रुक के आया जिसकी वजह से अहमद को ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। बल्ले का रुख उन्होंने जल्दी मोड़ दिया और लीडिंग एज लगा था लेकिन खुशकिस्मत रहे एक मरतबा फिर फील्डर्स की पहुंच से दूर। गुड कैरी एंड बाउंस इन द एंड, लेकिन अहमद इस मरतबा ज्यादा मोहतात है। तो पेशावर और लाहौर का ये मुकाबला जहां पर उम्मीद करते हैं कि मजीद फैंस इस अंदाज के गेम से इनके इलाके से हमें देखने को मिल सकेंगे। जो इनकी सप्लाई लाइन है वो शायद इससे पहले नहीं थी, आपको भी हम नहीं मिले थे तो आप तो खैर एक अलग ही पहचान अपनी रखते हैं सूबे से, लेकिन इसके साथ साथ वो खिलाड़ी जो कि हम 90s या 2000 में इतने नहीं महसूस करते जो कि इन इलाकों से आते हों, जो कि पाकिस्तानी टीम में भी लामहला क्वालिफाई कर चुके हैं। रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और एक के बाद एक आ रहे हैं। ऑफ द बैक फुट तीसरा चौका निकाल लेंगे अहमद शहजाद। जी हाँ, क्यों नहीं। अच्छी गेंद करते करते फिर चूक गए लाइन में और अहमद शहजाद ने गैर मामूली अंदाज से फिजाई रास्ता अख्तियार किया एक और चौके के लिए। रूम मिल गया था और बाउंस अभी तक के खेल में नजर आया कि इस पिच में ऐसा बाउंस है जो बैटर्स को स्ट्रोक प्ले में मदद देगा। कहीं कहीं है कि ऐसे पैचेस हैं एब्रेसिव नेचर जहां से बॉल फंस रहा है एक आधा, लेकिन जब आप विकेटों की लाइन से बाहर बॉल करेंगे, इतना रूम देंगे, तो जिस किस्म की फॉर्म में अहमद शहजाद हैं तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। और ये नियाज खान को अब पता लग गया होगा अच्छे से। 3 बाउंड्रीज कंसीड कर दी हैं उन्होंने। डॉट बॉल के साथ महंगा ओवर मुकम्मल हुआ। लाहौर हावी पेशावर के हवासों पे 15 बिना किसी नुकसान के। लाहौर वाइट्स की टीम जो कि बड़े खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अहमद शहजाद की फॉर्म तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उमर अकमल भी अपने आप को दोबारा से दरियाफ्त कर सकते हैं। मुनीब वासिफ एक बड़े टैलेंटेड नौजवान ऑलराउंडर हैं जो कि अपने पहले सीज़न में मुतासर कर रहे हैं अपनी हर तरह की कारकर्दगी, चाहे फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कोई भी शोबा हो। अहमद दानियाल का भी सीज़न जिसमें उन्होंने शुरुआत फर्स्ट क्लास की पिछले साल की थी, लेकिन इस मरतबा इस डोमेस्टिक सीज़न में पंजे गाड़ने में कामयाब रहे हैं। फिर ये भी कुछ एक्सपीरियंस और साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों का सीन इंतजार जिसके टॉप पे हैं साहबजादा फरहान। सुपर 8 की ये खासियत है कि अब हमें इवनली मैच टीमें मिलेंगी
और उसकी वजह से मुकाबले भी ज़्यादा इंटेंस होंगे, ज़्यादा क्लोज मैचेस होंगे। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई है, तो वो जो प्लेयर्स ट्रेनिंग कैंप में थे वो भी वापस आ गए हैं। तो पूरी आपको पाकिस्तान की क्रीम मिलेगी इन 8 टीमों में, और ये मज़ीद दिलचस्पी का बायस हो गया। आज जुम्मे का दिन है, अभी तक ज़्यादा तमाशाई आए नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जूं दिन बढ़ेगा तमाशाई आएंगे और क्रिकेट से एंजॉय करेंगे, महजूज होंगे, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी की क्रिकेट होने वाली है यहाँ पे। मुसलसल डाउन द लेग साइड अपने आप को कमिट किया हुआ है और वहां से अखलाक को मौका भी मिल रहा है, लेकिन वो बजाय इसके कि फ्लिक या किसी पुल शॉट के लिए जाए, उन्होंने ग्राउंडेड शॉट्स ही खेलने की कोशिश की है। लेकिन बेहतर है ये लाहौर के लिए। अहमद शहजाद ने पिछली रात बड़े घूम घूम के शॉट्स लगाए शाह फैसल, खासतौर पे जो अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया वो तो दीद नहीं था। जब गेंद उतनी शॉट नहीं होती थी उसको वो ऑफ द बैक फुट खेलते थे, और आज भी उसी अंदाज से उन्होंने शुरुआत की है। गो के अभी फास्ट बॉलर्स इन एक्शन है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि गो के उनके तमाम बैट्समैन के पास एक पॉइंट है प्रूव करने को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज़्यादा लगी लिपटी नहीं रखी है। और जो लग रहा है कि यहाँ पे टोटल शायद 180 का भी कम पड़े आज की पिच पे, उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से बैटिंग किया जी। और अगर देखा जाए तो अहमद शहजाद का टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है। 60 रन उन्होंने लाड़काना के खिलाफ बनाए, 81 क्वेटा के खिलाफ, 72 नॉट आउट क्रंच गेम था कराची ब्लूज के खिलाफ उन्होंने बनाए। लेकिन अब जो कंपटीशन है उसका लेवल और है, तो अब जो परफॉर्मेंसेस होंगी उनका मयार और होगा। तो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अहमद शहजाद की जानिब से। अच्छा कमबैक किया है इमरान ने, जो कि गेंद को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो विड्थ मिले। अहमद शहजाद जो कि कट और पुल के बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझे जाते हैं। अखलाक दूसरी जानिब इस वक्त स्लाइटली लग रहे हैं कि कुछ प्रेशर में हैं, और उनके पास ये जो मौका है इस पिच पे परफॉर्म करने का, मजाका नहीं होगा उनके लिए कि शायद वो अहमद शहजाद को ज़्यादा स्ट्राइक देते रहें, जो कि उनके खुद के लिए और लाहौर वाइट्स के लिए बड़ा बेहतर होगा कि ज़्यादा तेज़ी से पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं। और एक और जो टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे और परफॉर्मेंसेस की इंपॉर्टेंस की, इंटेंसिटी की, पीएसएल का ड्राफ्ट 13 तारीख को होना है, और ये जो तमाम स्काउट्स हैं इस वक्त वो नजरें गाड़े होंगे स्क्रीन पर। शानदार गेंद, परफेक्ट बाउंसर, क्या ये प्लेबल था? जी अंपायर के ख्याल के मुताबिक सब कुछ ठीक था। सरप्राइज किया अखलाक को जी। जैसे मैं इमरान की थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अब ये इनकी बिल्ड में काफ़ी तब्दीली आई है इस साल, और अब जब ये गेंद पटकते हैं हाफ वे डाउन द पिच तो वो कैरी करता है अच्छा विकेट कीपर के लिए। एक मरतबा फिर अखलाक सरप्राइज हुए, हालांकि काफ़ी पीछे गिरा हुआ गेंद था, लेकिन अखलाक अगले कदम पर आने की कोशिश में थे। ये देखिए यहाँ से बेहतर लगेगा, और बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं थे। खुशकिस्मती की बॉल ज़रा ऊपर था, अगर बॉडी की लाइन में होता तो मुश्किल हो सकती थी। बेहतरीन ओवर, एक मरतबा फिर हिलने का भी मौका नहीं दिया, अखलाक को बांध के रखा है। महंगे ओवर के बाद न्याज का था, लेकिन इमरान का शानदार कमबैक करवाया पेशावर को 17 बिना किसी नुकसान। सुपर 8 स्टेज की शुरुआत है, और ये वाहिद मुकाबला नहीं है आज का जो कि खेला जा रहा है। यहाँ पर भी एक और मुकाबला खेला जाएगा, जहाँ पर लाहौर ब्लूज कराची के खिलाफ उतरने वाले। फ्राइडे इवनिंग लाहौर और कराची का मैच, फैंटास्टिक फ्राइडे, और क्या चाहिए आपको। जबकि इसके अलावा मुकाबले चल रहे हैं जहां पर शादाब की क़यादत में उतरी है रावलपिंडी की टीम एबटाबाद के खिलाफ यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और सियालकोट का और फाटा का मुकाबला एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। तो समझ लीजिए कि कराची का बड़ा हिस्सा क्रिकेट ने कवर किया हुआ है इस वक्त। शाह फैसल जी बिल्कुल, और क्वालिटी क्रिकेट ने, जो आपने रावलपिंडी की टीम का जिक्र किया, फिर सियालकोट, फाटा, तमाम ही टीमों में सुपरस्टार प्लेयर्स हैं। एबटाबाद का जिक्र करें तो फ़खर जमान, यासिर शाह, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स इस वक्त कराची में मौजूद हैं। जहां आपको मौका मिले आप जाइए और एंजॉय कीजिए। अब्बास आफरीदी 28 मैचेस 39 विकेट, होनहार क्रिकेटर। न्याज को एक ओवर के बाद तब्दील करना पड़ा। T20 क्रिकेट में ज़्यादा मानी नहीं रखता कि आपको एक दो ओवर के स्पेल्स में आना पड़े, लेकिन इस एंड से एक अच्छा कमबैक देना पड़ेगा। न्याज ने टैलेंट और स्पीड सब कुछ दिखाया था, लेकिन विड्थ बहुत दे दी, जो कि वक्त के साथ सीखेंगे। अब्बास अफरीदी का पिछले जो कई सीजन से या कई टूर्नामेंट से परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है, अच्छा गुजरा टूर्नामेंट अब तक। और काफ़ी रंग बिरंगे जो यूनिफॉर्म्स हैं, इसके डिज़ाइन भी इस साल चेंज हुए हैं। पेशावर की टीम जो है अपने रिवायती येलो और ब्लैक में आ गई है दोबारा। थोड़ा सा अभी तक जो पिच के बारे में नजर आया कि बाउंस तो अच्छा है, लेकिन पेस टू पेस है कहीं ना कहीं।
ये भी ऐसा लगता है कि बॉल स्किट हुआ और इखलाक लेट हो गए शॉट पे। उससे पहले अहमद शहजाद एक मौके पर अर्ली खेल गए थे। लेकिन अब्बास आफरीदी की बात करें तो विकेट टेकर हैं ये गोल्डन आर्म रखते हैं और T20 क्रिकेट में भी हर मैच में विकेट्स हैं इनकी। यहाँ कराची के खिलाफ 1, लाहौर के खिलाफ 2, क्वेटा के खिलाफ भी 2 विकेटें और लाड़काना के खिलाफ भी 1 विकेट। बहुत ही होनहार क्रिकेटर हैं। पिछले साल PSL में उन्होंने तहलका मचा दिया, लीडिंग विकेट टेकर थे और अच्छा इंप्रूव किया है उन्होंने उसके बाद भी। बहुत विकेट मिली थी इस मरतबा, लेकिन एक मरतबा फिर स्लोनेस रही इस गेंद में, जिसके बाद घूम के खेलने के लिए चले गए, गेंद उसके बाद गुजरी और एक मरतबा फिर अखलाक फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिसको कैश कर सकते हैं क्योंकि आप बड़े शॉट के लिए लग रहा है कि हर गेंद पर अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अपना सीना ऐसा लगता है कि पूरा दिल पे रखते हैं और पूरे जोश के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, जो कि फास्ट बॉलर्स के लिए माने रखता है। ऑफ स्टंप पे टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप हिट करने की कोशिश करते हैं आमतौर पे। पेस बड़ा ज़बरदस्त है और एक सीजन की अच्छी शुरुआत आपको मिल जाए तो आप क्या चाहेंगे T20। उठा दिया गेंद को, फ्रस्ट्रेटेड अखलाक ने, आउट होने का खदशा, हारिस ही पहुंचे गेंद के नीचे, कैच मुकम्मल कर लिया तो अखलाक की विकेट का हसूल किया, मिजरी खत्म की ओपनर की। पहला नुकसान लाहौर को। विकेट टेकिंग एबिलिटी अब्बास आफरीदी की एक मरतबा फिर इस बड़े मैच में उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया अपनी टीम को। प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, अखलाक का बैटिंग का जो रिदम था आज की इनिंग्स का वो बिल्कुल नहीं आ पाया। आप देखते नहीं अखलाक को कि वो 2 रन बनाए 11 गेंदों पे, इस किस्म के वो प्लेयर नहीं हैं, लेकिन आज सेट नहीं हो सके। उनकी वापसी हुई, फ्रंट फुट चेक होगा, लेकिन यहाँ पर कोई मसला नहीं। एक मरतबा फिर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लगता है कि बल्ले का फेस उन्होंने जल्दी क्लोज कर लिया और बहुत ऊपर गई। फाइन लेग के फील्डर भी आ रहे थे, लेकिन हारिस ने आवाज लगाई और मेक श्योर किया कि कोई फील्डर उनके नजदीक ना आए। अखलाक की इनिंग्स का खात्मा, सिर्फ 2 रन बनाए, लाहौर 18 पे 1। अब्बास आफरीदी अपने मामूल के साथ उन्होंने पहले ओवर में विकेट हासिल की। सेट बैट्समैन नहीं थे, अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तैयब ताहिर टैलेंट बेशुमार है और जज्बा भी कमाल का है और ऑफ द बैकफुट जो कि इस अंदाज की पिच पे माने रखता है। शॉट्स भी बड़े जबरदस्त खेलते हैं। पार्टनरशिप बनाई थी अहमद शहजाद के साथ पिछले मैच में, लेकिन शानदार बॉलिंग अब्बास आफरीदी की। बाउंसर भी करते हैं और जो आगे की लाइन है उसमें फ्लिक करना बड़ा मुश्किल हो गया था लगा अखलाक को। तो ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अच्छी टेक्निक रखते हैं। थोड़ा सा इस पिच पे जो बाउंस है उस पर बात करेंगे और वही देखिए कि लो हैंड्स के साथ अखलाक भी खेले और बल्ले के ऊपरी किनारे पे लगा बॉल। ये देखिए हारिस की पोजीशनिंग, उनकी कॉलिंग, एक नज़र अपने साथी फील्डर पर रखी और अब्बास का सेलिब्रेट करना बनता है पहले ही ओवर में विकेट। जो चैलेंज अखलाक को था वही तैयब को भी हो सकता है, क्योंकि ये भी बैकफुट के तो अच्छे प्लेयर हैं कट और पुल के, लेकिन थोड़ा लो हैंड से खेलते। बात होगी इस पर बाद में। 4 के बाद 19 पर 1। For 1 and 4 overs have gone by. It's a sedate start, but we saw this from
Ahmed Shahzad in the previous game as well. He didn't really start all guns firing. Took his time, and he's done bulk of his scoring in the mid over 7 to 15. Yes, a different kind of opposition back then, but he's taken a very clear-cut approach towards his innings, that he changes gears, starts with the gear number 2 and then goes on all the way to gear number 5. And the good part about him, what we've seen in his whole appearance and his outings in this tournament, that he's gone for the big hits, but they've been calculated risks. They've not been rash shots, proper cricketing shots. Well, that's the difference of a mature batter, a proper batter. And he has to think like a batter. Play big shots, all right, but play them in the gaps, pick the right balls, good shot selection, and good selection of the time when you're required to take those calculated risks. And that is what makes him stand out so far in this tournament. And this one wrapped on the pads, and there was an appeal, but the umpire turns it down. So it's 21 for 1, and Lahore Whites in a spot of bother. Good thing for them is that Ahmed Shahzad is still around, and they need him dearly to be around for the maximum overs, because he's the man who's been scoring big and taking them over the line in the last games that they have won. So his form and his presence today will be of great value. And on the other side, somebody has to kick along with him. It just cannot be only him all the time. Now we're down to the Super 8s. It's a bit, shouldn't say a word tricky, but important to know what a good total is against a side like Peshawar. I think whatever they've been scoring, Lahore Whites batting first, they'll probably have to think 25-30 plus. Yes, it's a different pitch. The look is different. The surface has grass on it. Some areas where it seems very abrasive. So it will depend how much grip there is. So far, the shot making hasn't been that easy. And the batters are like circumspect. They're trying to find areas where they can go after the ball. And a lot of credit to the young Peshawar fast bowling brigade. They have been tight as well. Niaz Khan is somebody very new to this setup of Peshawar. This season he has bowled really well and looks a bowler who thinks. And otherwise on the other end as well, boys with the Peshawar side have done a really good job. Important partnership this, because not many boys are in form after these two. They've kept 2 men on each side in the deep. One is a deep square, and there is another one which is a very wide third, or you could say a very deep backward point, because he has the habit of flashing or slashing the shot anything outside the off-stump. Now that man is coming in. Who's going out? Is a deep mid-wicket being placed now. So both the men now on the onside. So Ahmed Shahzad has 2 options. If the ball is bowled within the stumps onto his body, he can either clip it in the gap, if that's possible, otherwise just nudge it with soft hands and go for a couple of runs. We'll see what happens now, because this is the second last over of the batting power play, and just 1 ball to go in this over. And Ahmed Shahzad's presence is valuable for Lahore Whites. One more over to go in the power play. It's 23 for 1.
Yeah, that's not very Peshawar-like. Misfield was straight to the fielder point. It is very important that the batters from the other end also support Ahmed Shahzad. Play some good innings, some innings where the impact comes from the other end as well. Otherwise, it will be too much pressure. This is obviously a different opposition. Nothing to take away from the class of the man, Ahmed Shahzad, but definitely he will require, as all players do, support from the other end. And this far in the power play, it's been all Peshawar. That's extremely wrong line and a bad one. Had to be put away. With fine leg inside the circle, you're asking for trouble. Yes, this one on the pads, and Tayyab did not miss out. And he's someone who we know has the shots, has the temperament, and has been performing for a number of seasons now. And lately in the emerging Asia Cup in Sri Lanka, he scored that wonderful 100 against India in the all-important final. And definitely, if he can be around in Lahore, can put up a very competitive score. Yeah, Bas with the last two deliveries is angling or trying to angle it into the right hander. Is just missing out, pitching middle leg and going further down. He's got more protection on the offside, but he's still going on with that leg stump line. More changes coming in. Point inside the circle as a long on now in position. Yes, this field suggests that the ball would be on the shorter side. And it was just back of a length, and Ahmed Shahzad seems hurt. Probably inside edge has gone on to that uncovered part of the leg, which can be very painful. As we see, Ahmed Shahzad is just brushing his hand on the leg, and the physio is going to check whether the man in form is good to carry on. Yeah, it does get some extra pace when the ball hits any part of the bat and then crashes into you. The pace increases. In the replay, we can see he goes across, wanted to go over mid-wicket probably, and then edge onto the pad. It can hit you hard, Sikandar, but that can also trigger, at times, better out of you. Let's hope good happens. Great shot that, off the back foot, and it goes for 6. That is some hit, because it was a slower ball, did not have any pace on it, but still Ahmed Shahzad, the kind of form he's in, he manages to hit it over cover for a 6 off the back foot. That is a special stroke. You can almost see he holds his post for a fraction of a moment because he realizes it's a slower one and then puts a lot of bottom hand power into that. There. And that is great adjustment. And it can only come from a proper batter. This kind of adjustment. Seen the ball early, waiting on, and then changing his stroke. That was a special stroke. He's played it nicely this time to cow corner, another 6. He's backing himself. There are 2 men in the deep on the onside, but he trusts his own bat swing. Power play comes to an end with 42 for 1. Well, these 2 shots from Ahmed Shahzad, 2 sixes, have changed the complexion of the power play, which looked as if entirely Peshawar were in charge. Now there is a man who's in form, scoring the highest number of runs so far in the tournament, is again on 28 of 18, and is looking dangerous for Peshawar.
And for Lahore's sake, he needs to carry on. So Iftikhar will try his arm over now. Bowl the 7th over, and 19 runs of this over makes the Lahore power play more meaningful. Previously, Lahore's worst power play came against this very team, Peshawar, where they were 30 for 2. I think it would have been the same. It's only that last over, 19 runs came out of it. 2 sixes and a boundary. Just changed everything. It was 23 in 5 overs. Signal for the power play end. We talked a while ago, now spinners come into action. You were talking about important how the partner should complement and Ahmed Shahzad and move along. Tayyib Tahir's best score has been 30 in this tournament. And he's playing for Shaheens not so long ago. He wasn't batting at 3. A little more middle orderish. He's got a different role here of number 3, which is one of the most important numbers. The important thing is that he's looked good. He's looked in control. He's just been getting out after those early starts. And now when the big stage has started, the Super 8s, he needs to just put in that more bit which is required from him, because he has the class and the temperament to score big runs. And, this one, top fielding effort at cover, but unable to stop the single. Will be important to see how spinners, if they can get any purchase of this pitch, which has the look of an abrasive surface. And there straight away, as we speak about it, one spins sharply and takes the stumps. And Tayyib Tahir, sadly for him, 11 of 10 balls, he's gone. You also get an impression he was a touch late on that shot, got that inside. I think he's played it onto the stumps. There was a rapid, sharp turn, but I think it's taken the inside part of the bat as well. Just the check of front foot, and seems absolutely perfect. Now we shall come and see it from the front, because we spoke about the pitch to grip, and yes, it did grip. And I think Tayyib was lazy on that stroke and probably did not expect any turn. But if you have observed the pitch, it definitely has the look where you should expect turn. But being lazy, is gone inside, edging it onto the stumps. 44 for 2, Lahore. Have a look at that again. The bat is not coming down straight. He's angling it towards mid-wicket. He takes that inside edge onto the stumps. It's not a straight bat. It's not a high elbow. It is. He's trying to work it onto the onside. Well, Sikandar, time for the very experienced Umar Akmal. 276 T20 games, 5,751 runs, average of 28. And we all know what he can do. But now is the time when the team really needs him to fire. He takes the run straight away, straight single. But everybody is waiting to see whether he can add some value to this team. That's exactly Tayyib should have played that shot. Straight bat, playing it to mid-off rather than trying to work it on mid-wicket. 46 for 2. So the power play is gone, and Lahore started in the shape of Ahmed Shahzad, carrying his good form and playing some wonderful strokes over the infield, and then a Clark edging going across the line, and great take by the keeper, was a very high catch. And then we saw Tayyib Tahir come in, play a stroke off his pads, and then Ahmed Shahzad's 2 sixes, bringing Lahore
towards that 42 runs, making that power play better, 46. And now, after the fall of 2 wickets, it's up to the most senior and experienced members of the team, Umar Akmal and Ahmed Shahzad, to take Lahore to a total where they can challenge Peshawar. It's Amir Azmat, the all-rounder, to take up the attack. New bowler. Amir is going to be bowling from the pavilion end. Let's look at what not to do and what to do in terms of shot selection. This is Tayyib Tahir's wicket. We were discussing how he's playing towards the onside, the gap. And then later on in the same over, how Ahmed Shahzad played. Probably different lengths, but you were talking about playing it this way. Yes, just a touch fuller, but exactly that is how Tayyib Tahir should have played, what Ahmed Shahzad did, presenting full face of the bat on the front foot, and that is where the confidence, how it affects your feet movement. We all know Ahmed Shahzad is in wonderful form, so that form obviously keeps your confidence levels high, and your feet movement suggests how confident you are, how good you are watching the ball. And Tayyib Tahir should expect some spin of this track, but it seemed as if he was not expecting any. In the last game, we saw Umar Akmal coming out, and already Ahmed Shahzad was going great guns. It's not necessary every time that you have to replicate what your partner is doing. To understand what's required out of you in that match situation, the game was already done and dusted. Could easily go out, not out, after scoring maybe 5 runs. Absolutely, totally agree, and to build his own confidence as well. And now is the time when he needs to just start playing 1s and 2s and then look for the balls that come his way. Don't force an issue, because his presence will be and can be of great value to Lahore, because we know that both of these players, they can take a couple of overs in terms of big overs in the context of the innings and take the total to somewhere which the other team does not expect. But it is important for them to build their innings. Yes, we know it's a T20 game, but you can still build your innings. I also wanted to ask you, just as an opinion, if you compare the captain and Umar Akmal, don't you think that Saad Naseem has a better understanding or his style of play for this number 4, rather than keeping him in the end? And Umar Akmal is more of your big hitter if required to get a good score going in the last 5. Well, Sikandar, yes, you can say that, but Umar Akmal is somebody who's batted for long innings in all the formats. So this is not an unknown territory for him. And with his experience, he should be able to bat. This one has been driven well. Elegant drive, but will be only 1. Like what I'm trying to build up over here is in the Pakistan team, you can see that you would skip Salman Agha if you got 5 overs left and you'll get someone who can clock the ball. 8 overs gone. 50 for 2. पचास रन जरूर मुकम्मल हो गए, लेकिन 2 विकेट्स गवा दी हैं लाहौर वाइट्स ने। लेकिन अब ये पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। अहमद शहजाद जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में अच्छी कमिटमेंट दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ बैटिंग में लेकिन फील्डिंग में भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ है, मच नीडेड फॉर्म है ये। मेरे साथ भी हैं शाह फैसल, उनसे बात करेंगे उमर अकमल की कमिटमेंट लेवल को लेके, उनकी फॉर्म को लेके, उनकी अप्रोच को लेके। अभी मुकाबला है इफ्तिखार के सामने। फैसल, इंपॉर्टेंट है, अहमद शहजाद ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है यहाँ से ऑनवर्ड्स उमर अकमल इस टीम को संभालें। जिस टीम में भी उमर अकमल खेलते हैं तो उनसे तवक्को तो ज़रूर होती है।
उनका जिस तरह का करियर होना चाहिए था स्टेज पर उस तरह नहीं है, लेकिन इस चीज़ से कोई डाउट कभी भी नहीं कर सकता कि उनका टैलेंट कितना है। और अगर आप पेशावर की टीम में हैं, आप उमर अकमल के बारे में जो भी कह लें, लेकिन इस वक्त वो जब तक आउट नहीं हो जाते तब तक पेशावर की टीम को एक टेंशन रहेगी। इस तरह के प्लेयर है उमर अकमल, ये उनका ऑरा है। कंटिन्यूस थ्रेट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि टैलेंट का तो हर इंसान इनका फैन है। जिस तरह के इन्होंने अपना करियर को आगाज किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे अहमद ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, उमर अकमल को भी करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, अवेल कीजिए, रन्स कीजिए अपनी टीम के लिए। और अच्छी मिसाल भी है उनके सामने, जिस तरह अहमद शहजाद ने डाउन एंड आउट थे 3 साल से, पिछले 3 साल उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं की थी, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। उमर अकमल भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके और मेरे चाहने से नहीं होगा, ये उमर अकमल के अपने चाहने से होगा। मौका उनके पास मौजूद है, 9 के बाद 55 पर 2। फोकस्ड हैं साद नसीम, क्योंकि आने वाले बैटर होंगे, कप्तान भी हैं। और फैसल, एक पंजाबी का शेर मैंने सुना था, उसकी एक लाइन थी कि हो नहीं जाता करना पैंदा। तो अहमद शहजाद ने यहाँ पे करके दिखाया है कि कैसे आप अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं, कैसे आप कमिटमेंट लेवल शो कर सकते हैं। और अब हर इंसान बात कर रहा है उनके कमबैक की, आज से साल पहले ऐसा नहीं था। जी बिल्कुल यही बात है। और अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें तो ये भी खुशकिस्मती है कि अहमद शहजाद के पास भी प्लेटफॉर्म था कि अपने आप को प्रूव करें। कामरान अकमल के पास भी प्लेटफॉर्म है, उमर अकमल रादर 4 मैचेस 3 खिलाड़ियों को आउट किया आजम ने, तो उस प्लेटफॉर्म का होना भी एक ब्लेसिंग है। आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो ना सिर्फ अपनी इस टीम के लिए अच्छा करेंगे बल्कि अपने लिए भी अच्छा करेंगे। जब आपके पास इतना टैलेंट होता है और आप टीम से बाहर होते हैं तो आपकी ईगो भी हर्ट होती है। जैसे कि अहमद शहजाद का ऐसा लगा इस बार जब वो सेलिब्रेट भी करते हैं कि वो हर्ट है और वो करना चाहते हैं, वो करके दिखाना चाहते हैं। जिन भी लोगों ने इनको राइट ऑफ किया वो उनको गलत प्रूफ करना चाहते हैं। अच्छा शॉट है ये, जोरदार शॉट है ये। उमर अकमल एट इज वेरी बेस्ट जब ये ऐसा शॉट खेलते हैं एक्स्ट्रा कवर की जानिब। शानदार चौका। उमर अकमल को आप हाथ खोलने का मौका नहीं दे सकते, चाहे वो फ्रंट फुट पे हो या बैक फुट पर। ज्यादा आगे गिर गया था गेंद, अच्छा वेट ट्रांसफर किया। शॉट में दमखम अभी भी उमर अकमल के हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि पेशावर वेरी होंगे जब तक वो क्रीज पर हैं। अच्छी क्रिकेट है। जोरदार चौका लगाने के बाद अब रोटेट कीजिए स्ट्राइक को, क्योंकि इसी तरीके से प्रेशर रिलीज होता रहेगा। और मैं दुआ हूं कि उमर अपने आप को री इन्वेंट करें, क्योंकि अभी भी क्रिकेट बाकी है। यंग हैं, फिट हैं, इतने फिट नहीं है लेकिन स्टिल अगर क्रिकेट मिलेगी, होप नजर आएगी तो आई एम श्योर उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन अहमद एक अलग ही लेवल पे हैं, एग्री करेंगे आप इससे? बिल्कुल। और मैच से पहले बात भी हुई अहमद से, गेम को रीड करने की भी कोशिश करते हैं, कंडीशंस को असेस करना, और एज ए सीनियर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी उन्होंने कि जो मेरी बात हुई मैं आपको बताता हूँ इस बॉल के बाद। बेहतरीन शॉट, तगड़ा शॉट, सीधा शॉट, 6 रन के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज उमर अकमल अपने जोन में है, अपना आप दिखाने के मूड में है। क्या बात है, लाजवाब। बिल्कुल फ्री माइंड के साथ ऐसा लगता है खेल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी के साथ कदमों का जबरदस्त इस्तेमाल। गेंद की पिच तक पहुंचे और जैसा मैंने कहा बैट का स्विंग और शॉट में दमखम आज भी बिल्कुल उसी तरह ही है। अच्छी बैटिंग है ये।
थोड़ा अंदर लगना चाहिए था। आइडिया ठीक था क्योंकि तेज बॉल किया था आजम ने, और अगर ये थोड़ा अंदर लगता तो यकीनी 4 रन मिल जाते। 10 ओवर से खेल मुकम्मल हुआ, 67 पर 2 लाहौर वाइट्स। चौबीस डॉट बॉल्स हुए इस ओवर में, इस इनिंग्स में, लेकिन सबसे अच्छी बात 25 सिंगल्स हुए। स्ट्राइक रोटेशन अच्छी है। जिस तरह मैं बात कर रहा था पिछले ओवर में कि अहमद शहजाद ने जिस तरह कंडीशंस को असेस किया था, और वो ये कह रहे थे कि 1-2 ओवर्स के बाद वो बाहर से पैगाम भिजवा देंगे कि इस विकेट पे क्या अच्छा स्कोर है, और यही तरीका होता है एक अच्छे सीनियर प्लेयर का। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, और जब आप कदमों का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो तो ये शो करता है कि आप कितनी अच्छी फॉर्म में हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं एज अ बैटर। जब आप 3-50 करके आ रहे हो, और ना सिर्फ 50, वो मैच विनिंग 50 हैं, उसका एक इम्पैक्ट डिफरेंट होता है जब आप टीम को मैच जितवाते हैं। और यहाँ पे लाहौर वाइट्स को सिंगल हैंडेडली अहमद शहजाद ने यहाँ तक पहुँचाया है। और आज अगर इस बड़ी अपोनेंट के अगेंस्ट एक और परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑल्दो मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दी है, अगर इस पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहें तब हम सोच सकते हैं कि अहमद का कमबैक हो गया। जिसमें एक और पहलू ये भी होता है कि आप देखें कि जिस पोजीशन के लिए वो फाइट कर रहे हैं उस पोजीशन पे नेशनल टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर वहां पे अभी जगह नहीं है, 2 रन के लिए कोशिश करेंगे लेकिन स्लिप हो गए उमर अकमल। अहमद का काम है रन्स करते रहना, और जब जगह बनेगी अगर वो रन्स करते रहे तो उन्हीं का नंबर आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि किसी सेटल्ड चीज को खत्म करके अहमद को अंदर लाया जाए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो भी फेयर नहीं होगा। तो अहमद का काम है रन्स करना, जो कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया इस साल। थोड़ा नीचे रहा है बॉल। पिच के बारे में बात करेंगे क्योंकि 11 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 70 पर 2 लाहौर वाइट्स। उमर अकमल ने छक्का लगाने के बाद 4 डॉट बॉलें खेल ली हैं, और अगर आप सोचें कि ये देखिए कितना जबरदस्त शॉट था, लेकिन यहां के बाद वो प्री गैस कर रहे हैं, लगता है प्री मेडिटेट कर रहे हैं। ये दोनों शॉट उन्होंने पहले से ही सोचे हुए थे कि ये बॉल आएगी और मैं ये शॉट खेलूंगा, और अब छक्का लगने के बाद 4 डॉट्स, इसका मतलब है कि वो प्रेशर वापस उन पे ही आ गया। उमर अकमल जब अपने बेस्ट या प्राइम पे थे तो हर बॉल पे मेरिट पे खेलते थे, वो गैस करने की कोशिश नहीं करते थे कि वो बॉलर के साथ एक स्टेप आगे निकल जाएं, क्योंकि उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो लेंथ पिक करके खेल सकते हैं। बेहतरीन पॉइंट है फैसल आपका, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जब आपने रन्स नहीं किए होते, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो थोड़ा आप वक्त लेते हैं, आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हैं, और शायद यही केस उमर अकमल का है। उनके साथ खेलने वाले अहमद शहजाद एक डिफरेंट अप्रोच से खेल रहे हैं, वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए सिंगल लेना आसान है, लेकिन चूंकि उमर अकमल ज़्यादा रन्स नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर डिफरेंट प्रेशर है। अहमद शहजाद एक अलग लेवल पे हैं, फील्डर है लेकिन बॉल उनके सर के ऊपर से गया है। 6 रन के लिए शानदार तरीके से इस लेंथ को पिक किया अहमद ने, बेहतरीन बैटिंग। छोटी बाउंड्री है इस तरफ, और अहमद शहजाद ने इस चीज को रियलाइज किया। लेंथ बॉल था, न्याज अंडर प्रेशर है, पहले ओवर में भी उनकी पिटाई हुई अहमद के हाथों। इस मरतबा अहमद पहले से ही तैयार थे उनके लिए इन द स्लॉट, और काउ कॉर्नर पे बिल्कुल फील्डर की लाइन में था, लेकिन अहमद शहजाद ने परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये बाउंड्री इजीली क्लियर कर लेंगे। इस बार फील्डर के हाथ में, और ये इनके लिए अच्छा है कि लेग साइड की जो बाउंड्री है वो कदर छोटी है, राइट मोस्ट पिच इस्तेमाल की गई है, ये पहली बार ये पिच इस्तेमाल की गई है। तो जो भी आप अहमद या उमर खेलेंगे इस एंड से तो उनके लिए ऑन साइड जो है वो छोटा है। इवन अगर आपने प्रॉपर हिट टाइम नहीं भी किया तो 6 रन के लिए बॉल जा सकता है, लेकिन स्टिल एबिलिटी बहुत है, स्किल बहुत है। प्रेशर जो है अब यहाँ से पेशावर के ऊपर बढ़ेगा क्योंकि बैटिंग काफ़ी है और ये दोनों अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं, फिनिश अच्छा करना होगा।
ऐसा होता है जैसे आपने एग्जैक्टली 3 बॉलें डॉट खेली हैं, अब चौथे पे प्रेशर है, अब उन्होंने निकल के मार दिया है। इस चीज से गुरेज करना होगा, अभी ओवर हैं, थोड़ा समझदारी से खेलना होगा। जी, जिस तरह बॉल उनके बल्ले में लग रहा था, उन्हें प्री मेडिटेट करने की जरूरत नहीं, और अहमद शहजाद गए उनके पास शायद यही बात करने। और छक्का लगने के बाद 1 सिंगल और 4 डॉट्स उमर अकमल ने खेली हैं। अच्छा लगा अहमद शहजाद ने जाके उन्हें बात बताई, और अहमद को थोड़ा काम रखना होगा उमर को। हवा में बॉल है लेकिन सर के ऊपर से गया है, ये लकी बाउंड्री कंसिडर होगी उमर के लिए। जब आप बहादुर हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है। रन्स के लिए गए थे लेकिन टॉप एज हुआ, फाइन लेग के ऊपर से 4 रन्स। फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर था, कंट्रोल नहीं कर सके इसे उमर अकमल, लेकिन खुशकिस्मत रहे। इस पिच पे बाउंस सबसे ज्यादा देखा गया, ये हालांकि ये स्लोअर कटर था लेकिन ऑलमोस्ट उमर के जो है कंधे तक आई ये बॉल। प्रेशर में है इस वक्त न्याज, 27 रन दे चुके हैं 2.4 ओवर्स में। फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, पहले ही सोच लिया हुआ है कि इनको ऐसे खेलना है, गुरेज करना होगा। और न्याज की अगर आप देखें जो स्ट्रेटेजी, शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं तो डीप मिड विकेट पीछे रखा हुआ, लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ, जबकि यहाँ पे इस तरह के ड्राइव ऑन दिया आप ऑन साइड पे मुश्किल शॉट है। अब उन्होंने फाइन लेग पीछे भेज दिया, लेकिन थर्ड का फील्डर ऊपर दायरे में आ गया है। कुछ लगता है न्याज अपने प्लान्स में क्लियर नहीं है, अपने माइंड में क्लियर नहीं है कि क्या वो करना चाह रहे हैं। उनकी फील्ड से तो यही पता लगता है। मुश्किल नहीं होता है जब आप ऑन साइड पे इतनी बाउंड्री छोटी हो और आप पाकिस्तान के 2 बेहतरीन हिटर्स को बॉल कर रहे हो। मना किया है सिंगल लेने से, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया, 81 पर 2 लाहौर वाइट्स। Outside edge, Lucky, and gets the 4. Outside the off stump, tried to play it over extra cover, got the outside edge. Lucky that went in the gap. That is most probably the first fault shot Ahmad Shahzad has played today. Otherwise, he's been in sublime form. I think Umar Akmal needs to take a leaf out of his book, Ahmad Shahzad's. Play some conventional cricket. He's got the talent to do that. He only needs to concentrate, apply himself, just like Ahmad Shahzad is doing nowadays. When you talk about Ahmad Shahzad, he seems to be in the form of his life. I haven't seen him around in the most elite circuit for a while, but when you look at him right now playing the domestic, he seems to be in sublime form. And his cricketing ability, his shot selection, everything, it just seems so perfect. And it wouldn't be wrong to say that if you take all the 18 teams, with all due respect to all good batters, he looks a little class apart. The ease with which he's hitting maximums, all of them are cricketing shots, calculated risks, nothing rash. Look at that. How he's elevated that over extra cover. He's toying with the gaps, with the field positions, and he gets to another 50. I don't think he's had any game where he's not scored a 50. This is 44th 50
in T20 cricket. 60 against Larkana, 81 against Quetta, 72 not out versus Karachi Blues. Fourth on the trot, I think, for him. And he brings that up with a beautiful shot over extra cover. Shahzad not out on 53 of 35 deliveries, 5 fours and 3 sixes. And he's showing everybody that runs can be scored at good pace, even when you're playing conventional cricket. Cricketing shots can get you runs. Niaz Khan to continue from the pavilion end. He's bowling his last over now. Very short, that one, outside our stump. And beautifully done over the keeper's head. And this time he goes over point. Angled his bat, most probably single-handed shot, but that angle of the bat at the last moment took it in the gap over point. 4 more runs to Umar Akmal. There you see, gave himself a bit of room, and with that angle, that bat at the end went in the gap over point. That's much better from Umar Akmal now. A couple of boundaries and a single after that. That's Ahmad Shahzad for you. Some beautiful full shots, drives. And look at that one over extra cover. Beautiful shot. Very quick on that back foot. And a bit of luck as well. And then look at this one over extra cover, beautifully played. Well, that's a huge wicket to break the partnership and get Ahmad Shahzad at this stage of the game. Massive moment for Peshawar. This will change the eventual total. What a massive moment this for Peshawar. This could actually change the complexion of the game in terms of the score that Lahore Whites would manage at the end of 20 overs. What a wicket that is, and especially the moment in which it has been taken, just around that 14th over mark. Front foot is all right. There you see no foot movement. Tried to play across the line, missed it completely, plumb in front. No hesitation for the umpire. Shahzad gone for 53.
Well, the captain has sent his namesake, Saad Khan, to go and have his luck. Probably also that there's a left-right combo. But what a big wicket that was. In the 14th over, Ahmed Shahzad, he knew it that he's gone. There's no way that would miss the stumps. It crashed into his back leg. Again, that one of those shots, he would back himself with it. But yeah, playing towards cow corner with the 0-foot movement. Well, he could trust to do that with the kind of form he's in. Don't take it away from Saad Khan, from Niaz. It's a big wicket. Niaz Khan has bowled well. He was hit for a few. But that's a big confidence booster for the young man who's been put in the side against experienced Imran Khan Senior. There you see, that's the dismissal. Trying to play across the line. Usually he plays that one straight through mid-on or something, but this time played across, missed, and paid the price. Wow, that is smashed through covers. He's flat batted that. What a good shot. Not a very good way to finish the over, but it was a very good shot from Saad Khan. Not a loose delivery by any chance. Just a hint of width, and he was onto it like a flash. Nothing would change, even the Super 8. Nice weather, winter sun and a cup of tapalti is a brilliant combination. You got to give it to Azam. He's been bowling very well. I think he's read Omar Akmal to perfection. He's not allowing him to even work it around for singles. He's following him whenever Omar is trying to make room, and he's keeping a very tight line. Well, it's up to Omar Akmal now to see the innings through and set a challenging total to Peshawar, to a strong batting lineup of Peshawar. And for that, it is important that he keeps that flow going, which Ahmed Shahzad had kept, hitting the boundaries when needed and picking up those singles. Very important. None for 13 for Azam in his 1.4 overs. I'll ask my statistician, you just tell us how many dot balls he's bowled. Quite a few. After being hit for that 6 of Omar Akmal. Now this is a slog. This is what will happen. You will force the batter to get into a release shot because you're not allowing him anything in terms of proper cricketing shots or work it around. This is a desperate shot from Saad. Yes, and he's bowled particularly well to Omar Akmal. There you see, dragged from outside off stump. Just a single. Yeah. That was very close. Not a very good throw, and that is what helped Omar Akmal get back in the crease. 108 for 3 after 15. I thought for a moment that that was an opportunity for a run out. The second run was forced on Saad by Omar Akmal. A better pick-up and release would have cost them. And that's why Haris was a bit cross. Look at that.
He's just had to push a square leg. Look at Haris, the wicket keeper. A little slow, the fielder in the deep to come around. And then a little wide this throw, and he couldn't collect the ball. He was surely gone. Gone for all money. Even if the keeper had collected it first time, it would have been game over for Umar Akmal. Abbas Afridi back into the attack. 1 for 21 in his 2 overs. Yeah, no timing in that. Other matches in the Super 8 have taken place. Some of them started off a little earlier in the day on different grounds. Have a match summary from there. This is Fata region versus Sialkot. 103 from Fata. Not much of a match there. They were bowled out in 16.5. And 3 wickets for Soebullah, 3 for Mohammad Ali. Look at the numbers of runs they've given away. Nothing. Sialkot, of course, walk in the park. With the loss of 2 wickets, they got 106. Won this match by 6 wickets, Sialkot. Keep in mind that in the Super 8, each team will play each other once. So it's not all lost. But you've got to have maximum number of wins to qualify for the semis. Yes, Hurera amongst the runs again. That's a good sign for Sialkot. He was a bit out of touch lately, but he played a very good innings here at the National Bank Stadium in the early stages, and he's carrying it on. Good signs for Sialkot. That'll be 4 runs. Umar Akmal will give you his set of acrobats. The kind of shots he's selected to play. 1 ramp shot. That was good improvisation, by the way. And he's trying to extract a few things. This is Saad Khan. Beg your pardon. It's very T20-like. If you're quick on your feet, get into good positions early, you can then afford to play such shots when final leg is in. For a moment, I thought that was a reverse hit from Omar. So, apologies for that. Wow, 2 full. There's a sound. Umpire doesn't like it. Not impressed. And they're going for a run. That's a good game awareness from the 2. Haris was so sure that there is an edge that he threw the ball in the air in celebration. The keeper and the bowler pretty much sure that they've got their man, but no, says the umpire, and that is what matters. Last game, just making the correction, Sialkot won that match by 8 wickets, not 6. (116) as we were talking. Ahmed Shahzad's wicket at that stage will surely have its impact on the total score. You see how things have just slowed down a touch. 16 of 13 balls, and they're just still 116. They've got to look at something somewhere around 160, 170 against Peshawar. Good change of pace there from Abbas. And that completes his 3 overs. 1 for 28. It's 16 gone, 116 for 3.
14 गेंदों से साथ मौजूद हैं उमर अकमल के साथ, और इस दौरान ये टोटल पहुंचा है 16 रन के इजाफे के साथ, और अगर इसी तरह ये चलते रहे तो 145 तक पहुंच पाएंगे। और जिस अंदाज का इन्होंने आगाज हासिल किया था उसके शायान शान नहीं होगा ये टोटल, इनको कम से कम जाना पड़ेगा 170 के आसपास तक इस पावर हाउस को चैलेंज करने के लिए जो पेशावर की टीम की बैटिंग की सूरत में मौजूद है। और अब से महज 2 रातें कब जो इफ्तिखार ने कर दिखाया था, उसके बाद तो शायद आसमान का लिमिट भी उनके लिए ठीक या काफ़ी नहीं होता, लेकिन उससे पहले इनको हासिल करना पड़ेगा कुछ अच्छा आगाज है आखिरी 4 ओवर्स का। इमरान की शानदार बॉलिंग है, एक मरतबा फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए यूनिवर्सिटी रोड एंड से। एक और खूबसूरत स्लो डिलीवरी, उमर अकमल 31 गेंदों से सेट हैं, लेकिन उनको चिकमा देने का जो कारनामा दिया है इंजाम इमरान ने वो माने रखेगा। अली यूनस, बड़ा शॉट चाहिए उमर अकमल को लाहौर के लिए और अपनी खातिर भी। जी लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पेशावर के बॉलर्स हैं इनकी जो वेरिएशन है बहुत कमाल की है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि स्लोअर वन बहुत अच्छा करते हैं और दूर करते हैं, यही क्वालिटी है इन दोनों बॉलर्स की। स्लो फुल टॉस मिल गई है, जोरदार अंदाज से घुमाया, लेकिन एक मरतबा फिर फील्डर मौजूद हैं। इस तरफ कुछ बड़े शॉट्स लगाए हैं उमर अकमल ने, और वहां पर उन्होंने जो पुराने वाले उमर अकमल थी उसकी भी याद ताज़ा की, जो कि इस तरह के कई इनको शॉट चाहिए होंगे। लेकिन अब तक वो जो फंसी फंसी इनिंग्स है, कुछ फेस में ये बड़े शॉट खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जो मुसलसल इनको अच्छी गेंदें मिल रही हैं उसकी वजह से वो उठान अब तक नहीं मिली है जो कि आपको श्योर शॉट एक बड़े टोटल की जानिब लेके जाए। ऑलराउंडर मुनीब का आना बाकी है, साद नसीम का ये ट्रिकी टूर्नामेंट चल रहा है, फिर इनके टेल स्टार्ट हो जाएगी दानियाल, आमिर और कामरान की सूरत में। तो ये अचानक से इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आन पड़ा है कि क्या इनके पास पूरा लाइसेंस है हिट करने को। साद खान ने एक बड़ा खूबसूरत इम्प्रोवाइज शॉट लगाया अभी तक। दो कदम आगे आए थे शॉट को खेलने के लिए, अपने आप को पहले से कमिट किया हुआ था, और चूंकि मूवमेंट थी इस वजह से वो बीमर को शायद क्लेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब चेज किया बैटर को इमरान ने। देखिए एटलीस्ट एक चीज जो लाहौर वाइट्स के हक में जाती है कि दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटर कर रहे हैं, तो एक साइड से एक बैटर को ऑन साइड की बाउंड्री मिलेगी जो कि थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। चेंज ऑफ पेस, एक बार तेज बॉल किया है, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन बीट हुए, पेस से बीट हुए। वंस अगेन इतनी स्लो जो कि शायद यहाँ पे स्पिनर भी गेंद करने के लिए आते, आजम खान तो उनसे भी स्लो निकलती है, और ये खासा है नौजवान इमरान का। क्या लेंथ बहुत अच्छी पे करते हैं, चेंज ऑफ पेस तो करते ही हैं, कोई काम एक्शन है तो ये बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी इतनी अच्छे तरीके से चेक नहीं होता है किसी भी बैटर से, और जब दूर पड़ा हो तो ज्यादा मुश्किल होता है। ओल्दो उमर अकमल ने आज अच्छी इनिंग खेली 38 रन की, लेकिन थोड़ा स्लो है। अब शायद इनको यहां से किक ऑन करना होगा, स्कोर को एक तो बड़ा स्कोर में कन्वर्ट करना होगा, तेज टाइम में करना होगा। शॉर्ट गेंद मिल गई और इसका फायदा उठाने में कामयाब। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, फाइनली जिस चीज की तलाश में थे, पेस भी मिला बाउंस पे, और जिस चीज की मुतकाजी थी वहीं खेले। क्या सेंसिबल क्रिकेट है ये, गुड गेम अवेयरनेस उमर अकमल की जानिब से, ये एक्सपेक्ट करते हैं हम इनसे, क्योंकि थर्ड का फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद था, शॉर्ट लेंथ को अच्छे तरीके से परखा है और सिर्फ गाइड किया है। अच्छे लग रहे हैं आज, देखिए अच्छी गेम अवेयरनेस है, थर्ड का फील्डर सर्कल के अंदर है, अगर आप बल्ला लगाएंगे तो 4 रन आपको यकीनी मिलेंगे। ये अच्छा आगाज है इन आखिरी 4 ओवर्स का उमर के लिए। सिर्फ 1 रन बना पाए इस ओवर की आखिरी गेंद पर, इमरान ने गो के चौका कंसीड किया, लेकिन ओवरऑल उनका शानदार स्पेल जारी, से 12 रन दिए, 123 पे 3 लाहौर। अली शाम की सुनहरी धूप है शहर कराची में, फैंटास्टिक फ्राइडे है, जहां पर अभी अगर आप लाहौर के मुकाबले की एक डोज से अपने आप को एनफ कंसिडर नहीं करते हैं तो एक और मुकाबला है, और इत्तेफाक की बात है कि लाहौर कराची का मुकाबला है। लाहौर ब्लूज और कराची वाइट्स एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे, और इस तमाम के लिए स्टेज सेट करने के लिए शायद चपाल दानेदार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस शाम की धूप में बैठना लोग इसके लिए किसी किस्म के प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते हैं, हल्का फुल्का विटामिन डी भी है, साथ साथ ये टपाल टी भी, और क्रिकेट के लिए स्टेज सेट भी। 3 ओवर है, क्या बनेगा? या जैसे मैचेस चल रहे हैं आपको चाहे वक्तन वक्तन मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी क्वालिटी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। और ये भी अगर आप देखें 17 ओवर में 123 रन बनाए हैं, ये कंपेटिटिव क्रिकेट है, दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं।
और अगर आपने उमर अकमल को बांध के रखा है 36 बॉलों पे 43 रन, इसका मतलब है कि बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। ये तो अच्छी बात लाहौर वाइट्स के लिए ये रही कि अहमद शहजाद बहुत शानदार फॉर्म में, जिन्होंने एक बार फिर अपनी टीम को आगाज अच्छा दिया है। इस मरतबा फिर चूक गए उमर अकमल। आपने ये बाउंड्री डायमेंशंस को बड़ा खूब अंदाज से ताक के रखा हुआ है। अब उमर अकमल को खुली खुली बाउंड्री मिल गई है, गो के उसको फील्डर्स के लिहाज से बांध के रखा हुआ है। निस्बतन ये शॉर्टर बाउंड्री है उनके लिए जोन में, लेकिन उन्होंने थ्रू द कवर्स भी बड़े दिल के शॉट लगाए हैं। जहां पर ये पूरा एक्स्ट्रा कवर का रीजन इनके सामने खाली मौजूद है, जल्द फैसले लेने पड़ेंगे उनको अपने कदमों में कि कहां से जाना। इमरान डोगर थे अभी आपकी स्क्रीन पे, अच्छे शेड्स लग रहे हैं। मैच नहीं मिला लेकिन एक्शन पूरे हैं। एक मरतबा फिर ब्लॉक होल में गेंद, सिर्फ एक रन के लिए खेल पाएंगे। टॉकिंग अबाउट एक्शंस, आपने भी लग रहा है कि कुछ शॉपिंग के लिए वक्त गुजारा है पिछले 2 दिनों के दौरान। शेड्स तो आपके भी टॉस में लोगों ने बड़े भरपूर देखे, किसी 60s के वहीद मुराद की तरह देखें आप। एंड डिपेंड करता है कि आज बाकी के मैचेस किस अंदाज से जा पाएंगे, क्योंकि अब नॉन स्टॉप क्रिकेट है। और जो रिजल्ट्स हम दूसरे सेंटर से आते हुए देख चुके हैं, सियालकोट की टीम ने अपनी 1 वे ट्रैफिक के साथ कामयाबी हासिल की है फाटा के अगेंस्ट। एक और टॉप मुकाबला जारी है जहां पर रावलपिंडी की टीम चेस कर रही है। 32 रन से इनफैक्ट जीतने में कामयाब रहा है। इंटरेस्टिंग मुकाबले। क्लियरली लेग को मिस करती, लेकिन कीमती ये कि सिर्फ 1 रन के लिए खेल पाएंगे। बांध के रखा हुआ है, जहां पे ये 18वें ओवर के आगाज में इनको कहीं 140-150 पे होना चाहिए था अली, क्लियरली यहाँ पे 15-20 रन शॉर्ट हैं इस मौके पे। जी हाँ, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए तो कहीं ना कहीं पेशावर की बैटिंग में लूप होल्स हैं, थोड़ी कमजोरी नजर आती है हमें उनकी बैटिंग में। इसलिए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसा टोटल होना चाहिए कि थोड़ा चैलेंज कर सकें। अगर यहाँ से कम से कम 25 रन और करें, 150 के इर्द गिर्द अगर यहाँ से लाहौर वाइट्स स्कोर करने में कामयाब होता है तो एक अच्छा मैच होगा। सिर्फ 1 रन के लिए खेल पाएंगे। आइडिया भी ठीक था उमर अकमल का, इस रीजन पे उन्होंने चौके भी हासिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद तवील सफर तय करना था और गैप में खेलने में कामयाब ना हो सके उमर अकमल। आने वाले बैटर्स में लिए मुसीबत यहाँ पड़ी है कि उमर अकमल ने डिसाइड तो किया हुआ अपने लेसन के साथ कि वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, लेकिन वो नाम जो कि अहमद शहजाद के इस वक्त होने की सूरत में इनके लिए कॉम्प्लेक्शन को चेंज करते हैं, वो अब नहीं है। और इस वजह से साद को कुछ वक्त गुजारना पड़ा, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मजीद ऑन साइड पर खास स्कोर के पीछे शॉट्स देखें। ऑप्शंस मौजूद हैं अभी भी लाहौर वाइट के पास। कामरान अफजल अच्छी हिट मारते हैं, तगड़ी हिट मारते हैं। इरफान लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये भी तगड़ी हिट मारते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ से अब इन दोनों बैटर्स को दोनों एंड से ही बड़े हिट्स लगाने होंगे ताकि कोशिश किया जाए स्कोर को 160 तक तो लेके जाया जाए। जोरदार अंदाज से एक मरतबा फिर स्मैश करने की कोशिश की है, लेकिन शानदार बॉलिंग अब्बास अफरीदी की। पूरा क्रेडिट जाएगा और नौजवान खिलाड़ी को जिन्होंने गो के इस तरफ की बाउंड्री में मुख्तसर थी, लेकिन ऐसी लेंथ के साथ गेंद की, ना पूरा पुल शॉट के लिए जा पा रहे हैं, ना ड्राइव कर पा रहे हैं। बेहतरीन बॉलिंग अब्बास की। ये अच्छा मिक्स करते हैं। एक महंगा ओवर बीच में किया, लेकिन वो अहमद शहजाद थे, उनकी फॉर्म के अगेंस्ट इनको थोड़े रन जरूर हुए, लेकिन उनके अलावा कोई भी बैटर जो है वो इनको कंफर्टेबल तरीके से नहीं खेल पाया। और सबसे अलग बात यह है कि ये मुश्किल एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन साइड की बाउंड्री छोटी है, तो ये ज्यादा कमेंडेबल है इनके लिए। शानदार ओवर मुकम्मल अब्बास अफरीदी का, बगैर किसी बाउंड्री के गुजारा। 2 बाकी, 128 पे 3। अली एक ओवर अब करने का खुला खुला ऑप्शन है इमरान के पास मौजूद, जो कि अपनी बॉलिंग के अरूज पे हैं। गो के विकेट हासिल नहीं की, लेकिन 3 ओवर में 12 रन दिए हैं, जो कि आप आंखें बंद करके कबूल कर लेंगे किसी भी T20 मैच में। और एक लाहौर की ऐसी टीम के खिलाफ जो कि स्टार स्टडेड हो। अहमद शहजाद अपनी रेड हॉट फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन वो हट में वापस जा चुके हों। और दूसरी जानिब अब एक ओवर जो बचेगा और वो आखिरी होगा, वो करने के लिए आना पड़ेगा मोस्ट लाइकली आमिर असमत को। इसके अलावा आजम खान ने भी बॉलिंग की है, उन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं, लेकिन क्या आप आखिरी ओवर के लिए अफोर्ड करेंगे एक स्पिनर को? एक बड़ा क्वेश्चन होगा। बड़ी बाउंड्री ऑन साइड पर उमर अकमल के लिए, लेकिन जाना पड़ेगा।
चार्ज करने के लिए गए, लेकिन एक मरतबा फिर मिस हिट, अपने जिस्म से दूर रहकर खेले। वो जो कदमों का इस्तेमाल उमर का करियर के इब्तिदा में खासा होता था, लाइट ऑन हिज फीट निस्बतन होते थे, वो कि बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के तो पहले भी नहीं थे, लेकिन वो चीज़ शायद इनके आड़े आ रही है कि गेंद तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रहे। फिटनेस तो एक मसला है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हैं, इसलिए जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो थोड़ा केयरफुल ज़्यादा होते हैं, अपनी मर्जी से शॉट्स नहीं खेल पाते हैं। एबिलिटी तो बहुत है अकील, ये तो बात मानना होगा, पोटेंशियल तो बहुत है, और इन्होंने जस्टिस नहीं किया अपने पोटेंशियल के साथ। अब अच्छा मौका है साद खान के लिए कि ऑन साइड की छोटी बाउंड्री है इनके लिए। यही मैं बात कर रहा था कि दोनों एंड लेफ्ट और राइट का यही फायदा होगा कि एक बैटर को एक साइड पे बाउंड्री छोटी जरूर मिलेगी, और ये मौका है साद खान के लिए। और अभी आखिरी ओवर भी मोस्ट लाइकली आमिर अजमत करेंगे या आजम खान करेंगे, डिसाइड करेंगे कप्तान, तो उनके लिए भी छोटी बाउंड्री आएगी उमर के लिए, तो उसका वेट कर सकते हैं। बेहतरीन बॉलिंग के साथ को अपने स्ट्रोक को चेक करना पड़ा, जो कि पॉसिबली एक मरतबा फिर जाना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन एंगल करके सिर्फ एक रन के लिए खेल पाए हैं। गेस्ट प्लेयर हैं, 24 साल टैलेंटेड साथ, लेकिन ये जो प्रेशर वाला गेम है जिसमें हर खिलाड़ी को अपने लिए इंडिविजुअली ख़ास तौर पे अगर आपको बहसत मेहमान एक गेम के लिए इन्वाइट किया गया तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट प्रूव करना है। अब तो कोशिश भी अच्छी की है, लेकिन शानदार बॉलिंग, अपने फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। एक मरतबा फिर पेस को चेंज किया और उमर अकमल जैसा तजर्बाकार बैट्समैन चेक करने में कामयाब ना, उसका रिप कैच पे जाकर हिट किया। उम्मीद है कि जल्द तैयार हो जाएंगे उमर अकमल, स्ट्रॉन्ग बॉडी के हामिल है। ऐसा लगा जैसे बहुत जोरदार हिट मारने जा रहे हैं उमर को, थोड़ा लेट खेलना होगा क्योंकि वेरी करते हैं, इनको हाथ को एंड तक देखना होगा। ये भी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी है, और जब भी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी बॉलर करता है तो आप जल्दी कमिट कर जाते हैं शॉट को, बॉल लेट आता है जिसकी वजह से आप बीट होते हैं क्योंकि पेस ऑफ हो जाता है। लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बाद उमर को ये चीजें तो एडजस्ट करनी होंगी। कमाल की बॉलिंग की है, आप ना सिर्फ इंटेंट को माइनस नहीं कर सकते हैं लाहौर की, उसने अपनी कोशिश की है पिछले 3 ओवर्स के दौरान शॉट खेलने की, कहीं भी आपको ऐसे अटैकिंग शॉट की कोशिश ऐसा नहीं था कि नजर ना आई हो, लेकिन इसके बावजूद वो पकड़े गए हैं उस चेंज ऑफ पेस में, ब्लॉक होल की डिलीवरीज में, जो कि किसी फास्ट बॉलर गए कप्तान का ख्वाब होते हैं आखिरी 4 ओवर्स में, जो कि फेमसली अब डेथ ओवर्स की बॉलिंग कहलाती है। गेंद करने के लिए अपने कोटे को मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं। पिछले ओवर में सिर्फ एक चौका और अब तक बगैर के। विकेट मिल गई, हवा में खेले और कैच में मुकम्मल कर लिया। डिजर्व कर रहे थे इमरान इस विकेट को हासिल करने के लिए, और शानदार फील्डिंग के जरिए से जाते जाते विकेट भी चुरा ली। शानदार बॉलिंग फिगर्स नौजवान इमरान के, और अच्छा कैच भी नबी गुल की जानिब से। ये लंबी बाउंड्री है, इसी का चांस लिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की इमरान ने, लेकिन इतनी फोर्स नहीं थी, इतनी एलिवेशन नहीं थी। अच्छी स्मार्ट बॉलिंग इमरान की जानिब से। ये यूजुअली नो बॉल नहीं करते हैं, यहाँ पे भी सेफ होंगे, लेकिन हम ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं साथ को क्योंकि इनको बॉलिंग इनको बड़ी हिट के लिए जाना था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया था, स्लोअर वन, एक और बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी। अच्छा कैच नबी गुल की जानिब से। वापस जाना होगा साद खान को। 13 बॉलों पे 13 रन बनाए, 131 पर 4 लाहौर वाइट्स। कप्तान साद नसीम नए बैटर हैं, ऐसा लगा मुझे कि शायद थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते थे। कामरान अफजल को भेज सकते थे, इरफान को भेज सकते थे, वो बड़ी हिट मारते हैं। शायद एक ये हो सकता है कि स्पिनर बॉल करने लगे हैं, आजम खान बॉल करेंगे, ये स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। और अब आखिरी 6 बॉलें हैं, 1281 रन, 116 की स्ट्राइक रेट, 450 साद नसीम। और अब ये एक्साइटिंग होगा देखना कि 6 बॉलें आखिरी कैसे खेलते हैं उमर अकमल। छोटी बाउंड्री है, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। इस चैलेंज पे पूरे उतरे हैं अब तक आजम स्पिनर को आखिरी ओवर में गेंद करने के लिए, लेकिन एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द फील्ड
और जहां पे कदमों के इस्तेमाल की जरूरत थी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी जानिब साद नसीम है जो कि 5 गेंदें शायद वो इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सके जो कि 2-3 ओवर्स का सफर किसी खिलाड़ी को मिलता तो करते हैं, लेकिन इससे पहले उनके आने की वजह बनी साद के विकेट। अकॉर्डिंग टू द फील्ड डिजर्व कर रहे थे इस विकेट को, आखिरी ओवर्स में हासिल की। ऊंचा खेलने के लिए गए हैं, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और इस कैच को अपने महफूज हाथों में मुंतकिल कर लिया आमिर अजमत ने। 3 गेंदों की स्पेस में 2 विकेट्स गिर गई जो कि सम अप करती जा रही हैं लाहौर की इस अदरवाइज स्टार स्टडेड टीम को ढेर हो रही है पेशावर के सामने। अब ज्यादा ब्लेम हम कर नहीं सकते हैं साद नसीम को, क्योंकि उनको आना था और आते ही बड़े हिट मारने थे, लेकिन शायद अगर किसी और को प्रमोट करते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। चांस लिया स्पिनर का, छोटी बाउंड्री का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके। साद नसीम अपनी विकेट गवा दी। बहुत जल्दी यहाँ पे मसला नहीं होगा क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट है पेशावर का, कोई मसला नहीं। बहुत पोजीशन में आए, मिड विकेट ढूंढ रहे थे, ये इनका फेवरेट शॉट है लेकिन एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए और आसान सा कैच आमिर अजमत के लिए। बगैर कोई रन बनाए पहले ही बॉल पे साद नसीम को वापस जाना होगा। 132 पर 5। अब आए हैं कामरान अफजल। मुझे लगा कि शायद इनको प्रमोट करना चाहिए था क्योंकि इनमें वो 6 हिटिंग एबिलिटी है। अकील ये बड़े लंबे छक्के मारते हैं, अक्सर हमने इनको देखा है क्लब क्रिकेट में, लाहौर में अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। और डेथ में अगर आप आखिरी 15 बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो अपने डिजायर्ड टोटल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उमर अकमल ने काफी स्लो खेला है एंड पे। 2.5 ओवर हो चुके हैं, आखिरी बाउंड्री लगे जो कि कहने को 2.5 है लेकिन इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में सदियों पुरानी बात लगती है जब आखिरी मरतबा बाउंड्री लगी। और डेथ ओवर्स के शान बॉलिंग की है पेशावर ने, लेकिन गैर मामूली एक हिसार सा कायम है। सेट बैट्समैन होने के बावजूद उमर अकमल की जिम्मेदारी ज्यादा थी। 49 पे नॉट आउट है, फील्ड वाइड स्प्रेड है ऑन साइड पर, बाउंड्री मुख्तसर है, बड़ी शॉट लगानी होगी। 2 कदम आगे आकर फिजाई रास्ता दिया है, गेंद जा रही है फील्डर के हाथों में। 1 रन पहले से 50 मुकम्मल करने के उमर अकमल भी चलते बने। बहुत ऊंचाई दी लेकिन डिस्टेंस ना दे सके उमर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे उमर और अपने विकेट गवा दी। हवा में बहुत देर बॉल किया है, ज्यादा दूर नहीं जा सका बॉल। डिसिप्लिन की हम बात पहले कर चुके हैं कि ये यूनिट बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट है और फील्डिंग भी बहुत शानदार रही है। कैचिंग कमाल की रही है बाउंड्री पे। इस बार अब्बास अली थे फील्डर। अच्छा कैच है ये, इंपॉर्टेंट कैच है क्योंकि आखिरी 3 से 4 बॉलें भी खतरनाक हो सकती थी अगर उमर अकमल क्रीज पे रहते। थोड़ा स्लो इनिंग, लेकिन एटलीस्ट इस इनिंग ने उमर की फॉर्म को बहाल किया है। थोड़े रन्स किए उन्होंने, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। 49 रन की इनिंग 133 पर 6। दो गेंदों का एक काम बाकी रह गया है लेकिन आज बहुत एक्शन बाकी है। अगर आप कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इफ्तिखार ने इस चेस को लीड करना है जो कि बज़ाहिर अली बड़ा आसान टोटल नजर आता है, लेकिन लाहौर पे अब देखना पड़ेगा कि किस अंदाज से वो अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर मुनीब वासिफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। अहमद दानियाल जो कि गेंद करने के लिए आएंगे कुछ देर के बाद, उनको भी जाते जाते सिर्फ 2 गेंदों का काम मिला है जो कि सामना करना पड़ेगा। लेकिन साहबजादा फरहान, इफ्तिखार, मोहम्मद हारिस, ये सब आपके नेबरहुड में अगर आप कराची में, और उसके बाद कराची और लाहौर का मुकाबला भी तो होना है। लाहौर के लिए आज ये डबल डोज है अपने आप को प्रूव करने की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। अहमद दानियाल आ गए हैं, ये भी लंबी हिट मार लेते हैं, लेकिन देखना है क्या मोमेंटम हासिल कर सकेंगे। शानदार बॉलिंग, जाते जाते आजम ने अपनी दूसरी विकेट भी हासिल की है। इनिंग्स की आखिरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं। 3 ओवर हो चुके हैं ख्वातीनो हजरात, बाउंड्री लगे हुए। गैर मामूली हिसार, कहाँ चौक और छक्कों की बरसात का ख्याल लेकर मैं और अली पहुंचे थे और कहाँ एक जमूद सतारी है। ज्यादा सरप्राइजिंग ये रहा कि उमर अकमल खेलते रहे एंड तक, फिर भी बाउंड्री नहीं हासिल कर सके। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। फिनिश अच्छा करना चाहिए था, सेट है, करना चाहिए था।
और लगता है कि जाते जाते बाउंड्री के करीब कम से कम जरूर खेलने में कामयाब हो सकेंगे, लेकिन अभी भी बाउंड्री तलाश न कर सके। 3 ओवर से ज्यादा का वक्त बाउंड्री के बगैर गुजारा है लाहौर ने। एक मुसीबत आन पड़ी थी जिसे निजात मिलेगी फाइनली इन 20 ओवर्स के मुकम्मल होने के बाद, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाता है लाहौर की इस डेथ ओवर्स की बॉलिंग को। आंखें बंद करके आप इमरान और इनके साथी खिलाड़ियों बास आफरीदी और आजम खान के इस आखिरी ओवर को प्रेस कीजिए और करते चले जाइए। डेथ ओवर के किसी कप्तान का ख्वाब होती है ऐसी बॉलिंग जो आज उन्होंने कर दिखाई है, और इसके मरहूने मिन्नत उनको महज 6.5 रन पर ओवर की औसत का टारगेट मिला है। अली भाई, यहाँ तो वो ना सिर्फ लाहौर की स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जीत सकते हैं बल्कि अपने नेट रन रेट आगे माने रख सकते हैं। 8 टीम्स की ये कशाकश होगी तो वहाँ पर उस हवाले से भी एक बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। या सेटिस्फाइड होंगे इफ्तिखार अहमद जो कि कप्तान है पेशावर के इस परफॉर्मेंस से। टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, अली विकेट भी हासिल की, विकेट मिलते चले गए। अहमद शहजाद ने जरूर अच्छी इनिंग खेली, उमर ने खेली, लेकिन थोड़ी स्लो थी। इन द एंड एक सेटिस्फाइड कैप्टन है कि सिर्फ 136 रन पर ही रोका। टॉस पे इन्होंने 150 कहा था कि हम 150 पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, लेकिन ये उससे भी कम है, तो ज़्यादा खुश होंगे। अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी, हारिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होगी। ये रन आसानी से हासिल करने चाहिए पेशावर की साइड को। जैसे आप कह रहे थे कि 6 साढ़े 6 की रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल आसान होती है जब एक साइड की बाउंड्री छोटी हो। अब अगर बैटिंग की बात करें तो 53 रन की इनिंग खेली अहमद शहजाद ने। जल्दी विकेट गिर गई थी अखलाक की और तैयब की, फिर उमर अकमल और अहमद शहजाद की एक पार्टनरशिप डेवलप हुई, लेकिन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग इनिंग रही उमर अकमल की जानिब से, जिन्होंने 49 जरूर रन बनाए लेकिन बहुत स्लो बनाए। आखिरी 3 ओवर जैसे आपने जिक्र किया कि बाउंड्री नहीं लगी, 46 बॉलों पे 49। साद ने कोशिश की 13 रन की, लेकिन उसके अलावा कोई भी जो बैटर है वो इम्प्रेस नहीं कर पाया, और 20 ओवर में सिर्फ 136 रन बना सकी लाहौर वाइट्स की टीम। पेशावर की इस टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग, उनके माथे का झूमर अब तक की ये परफॉर्मेंस जहां पर एक विकेट मिली है इन तमाम, इमरान, नियाज, अब्बास आफरीदी, इफ्तिखार को आजम ने 2 ली, लेकिन इस सब में स्टैंड आउट करती है वो इकॉनमी जो कि इफ्तिखार की खुद थी, मिडिल ओवर्स में गेंद करने के लिए आए थे, और उसके साथ आमिर ने अपना स्पेल मुकम्मल किया, सिर्फ 1 ओवर उन्होंने किया, और इमरान पिक ऑफ द बॉलर्स में से एक रहे जिन्होंने 4.25 की इकॉनमी के साथ महज 15 रन दिए और आखिरी गेंद पर जाते जाते विकेट भी निकालने में कामयाब रहे। आज जुमे की दोपहर बैटिंग की इब्तिदा करने के लिए आए थे इनके स्टार प्लेयर अहमद शहजाद, और दूसरी जानिब अखलाक मौजूद थे। अहमद शहजाद ने इब्तिदा में रिस्क लिया और ऑफ द बैक फुट जो कि उनका खासा रहा है, खासतौर पर इस टूर्नामेंट के दौरान वो शॉट खेलते रहे, बाउंड्री निकालते रहे, लेकिन अखलाक के लिए मुसीबत आन पड़ी थी, उनको शॉट खेलने थे और वो जल्द बैट के फेस को क्लोज कर गए। अहमद शहजाद का फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेने का सिलसिला जारी रहा। दरमियान के ओवर्स में आए थे इफ्तिखार गेंद करने के लिए, जिन्होंने तैयब ताहिर को जल्द आउट किया, बैकफुट पे खेलने के लिए चले गए थे, फिर उमर अकमल ने चार्ज संभाला, थ्रू द कवर्स कुछ दिलकश शॉट खेले। अहमद शहजाद ने अपनी एक और 50 मुकम्मल की इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो कमिट कर गए थे अपने आप को ऑन साइड पे खेलने के लिए। क्रॉस द लाइन वहां पे विकेट हासिल हुई पेशावर को, और वो टर्निंग मोमेंट साबित हुआ इस गेम का, जहां से बाउंड्रीज निर्धारित हुई और एक के बाद एक करके विकेट्स भी गिरी। 6 खिलाड़ियों को इन दी एंड आउट करने में कामयाब रहे और आखिरी सोने जैसा ओवर मुकम्मल किया, जिसमें पहले सेट बैट्समैन को आउट कर चुके थे दूसरे एंड से, और अब साथ नसीम की विकेट हासिल हुई, और उसके बाद उमर अकमल भी जो 49 पे नॉट आउट थे, अपने 50 का ख्वाब पूरा करना चाह रहे थे T20 में ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका और ड्रीम फिनिश किया पेशावर ने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। एक 137 का स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट है जो कि महज 6.5 रन पर ओवर की औसत बनती है। क्या करेगा पेशावर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में? चंद ही लम्हात में एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद होंगे लाइव। आउट होने का खदशा, हारिस ही पहुंचेंगे इनके नीचे, कैच मुकम्मल कर लिया। There straight away. टाइमिंग और प्लेसमेंट की तो क्या ही बात है। ये अहमद शहजाद एक अलग लेवल पे हैं। अच्छा शॉट है ये, जोरदार शॉट है ये। मिल गई, हवा में खेले और कैच में मुकम्मल कर लिया।
जुमे की खूबसूरत शाम है। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का मुकाम है, जहां पर लाहौर और पेशावर अपना पहला मुकाबला खेल रही हैं सुपर 8 का। और पेशावर के पास इस सुनहरी धूप में एक गोल्डन मौका है अपनी पहली विक्ट्री रजिस्टर करने का। 137 रन का टारगेट, जो कि 7 रन पर ओवर से भी कम बनता है चेस करने के लिए। शानदार डेथ बॉलिंग की है। अहमद सईद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लाहौर को वो इतनी आसानी के साथ पकड़ने में कामयाब होंगे। लगभग आप समझ लीजिए कि एक बाउंड्री कम या 2 गेंदों को छोड़ के आखिरी 4 ओवर्स में कोई बाउंड्री नहीं लगी अहमद, और वो ऐसा मोमेंट भी नहीं था कि आपको कोई विकेट्स की बौछार नजर आ रही हो। ये शानदार डेथ ओवर्स थी, और शायद कुछ लाहौर के बैट्समैन की वहां पर ऐसी वीकनेस भी पकड़ी गई, लेकिन बेहतरीन मौका लग रहा है पेशावर के पास। बिल्कुल, बहुत शानदार बॉलिंग आखिर में उन्होंने की, लेकिन अहमद शहजाद फिर जिक्र करना पड़ेगा कि वो की थे, और उनके आउट होने के बाद वो मोमेंटम जो लाहौर की इनिंग्स में नज़र आ रहा था वो अचानक से जो है वो रुक गया, और हावी हो गए बॉलर्स उनके, और विकटें फिर एक के बाद दीगरे जब उन्होंने ली तो बहुत मुश्किल हो गया लाहौर के लिए एक्सेलरेट करना। साहबजादा फरहान, जिनका ये शानदार सीजन चल रहा है, कोई भी फॉर्मेट हो फर्स्ट क्लास से उन्होंने शुरुआत की, और अब इसको T20 में इस टॉप के मौके पे बदलते हुए अपने लिए रन्स में, जब वो अब से शायद 5-6 साल पहले एक बड़ी दरियाफ्त करार दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से आकर उनको अपने आप को ढूंढना पड़ा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। दूसरी जानिब गेस्ट प्लेयर हैं गेंद करने के लिए लाहौर के बाद दस्तयाब, जो कि इब्तिदा में विकेट हासिल करनी पड़ेगी लाहौर को, और उसके अलावा कोई चारा मौजूद नहीं है। नौजवान गेंद करने के लिए आएंगे। आमिर सामने मौजूद हैं इनके एक और नौजवान हारिस, जो कि अपने पिछले 2 सीज़न की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन्होंने टॉप फ्लाइट हासिल किया, और उसको बरकरार रखने के लिए इनके लिए ज़रूरी रहेगा कि वो पेशावर के लिए इस सुपर स्टेज में, जहां पर लगातार आपको 7 मैचेस खेलने हैं, हर मैच में अपनी कंट्रीब्यूशन डालें। और वैसे भी पेशावर की वो टीम है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ आमतौर पर शुरुआत करती है। तजर्बा इनके पास मौजूद होगा साहबजादा फरहान का, जो कि इससे पहले लीड भी करते रहे हैं इस टूर्नामेंट की टीम को, और उन्होंने हर मौके से पूरा फ़ायदा उठाया है। नौजवान आमिर खान गेंद करने के लिए आएंगे लाहौर के लिए यूनिवर्सिटी रोड एंड से। एक स्लिप मौजूद है जो बहुत करीब है विकेट कीपर के, लेकिन एच पे रिलाई करना पड़ेगा। कोई चांस अगर देंगे तो शायद पेशावर दोबारा वापस आने का मौका ना दे, और अगर इब्तदाई ओवर्स अच्छे हासिल हो जाते हैं तो पेशावर इस बात की हल है कि वो तेज़ रन्स बनाकर इस टारगेट को जल्द चेस करे। टिपिकल फील्ड है T20 क्रिकेट के लिए। शॉर्ट फाइन लेग पर भी इसके साथ फील्ड लिया है, लेकिन एक स्लिप मौजूद है जो कि अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहेगी। अब्दुल मकीत ने कहा है कि सब कुछ ठीक और तैयार है पेशावर के चेस के लिए। पहली गेंद पर तेज खेलने की कोशिश की, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। वहां पर ऑलमोस्ट यकीनी हो सकता था, लेकिन डाइव करके रोका। पेशावर से ही है इनफैक्ट आमिर, जो कि गेस्ट प्लेयर के तौर पर गेंद करने के लिए। आमिर, T20 क्रिकेट में नतीजे का बताना या कहना या प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक काम होता है, लेकिन पेशावर की जो बैटिंग लाइन है इस वक्त, उसको देख के लगता है कि काफ़ी रन शॉर्ट लाहौर हो गई इस बार। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनको इस टोटल को डिफेंड करना, अगर उन्होंने जल्द अज जल्द चंद विकेटें ना ली तो। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 28 रन, यानी रन बॉल की औसत से भी कम बनाने में कामयाब रहे हैं लाहौर के बैटर्स, जो कि इस बात के गमाज हैं कि गो के पिच भी आज एक मरतबा फिर उतनी ज़्यादा जो कि आपको देखने में लगे स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब तक की आप बेहतरीन पिच भी समझ सकते हैं, और कम से कम बाउंस आज अच्छा है, जिस पे ट्रस्ट करते हुए अहमद शहजाद एंड कंपनी ने इब्तिदा में रन्स हासिल भी किए थे, लेकिन वो बटोरने में उमर अकमल डाइंग मोमेंट्स में कामयाब ना हो पाए। आजम खान ने आज पेशावर के मेरे ख्याल से बहुत शानदार बॉलिंग की है, ख़ास तौर पे उमर अकमल को जो उन्होंने बॉलिंग की वो बहुत ही नपी तुली और बहुत ही देखभाल के उन्होंने एक प्लान के तहत उनको बॉल की, और उनको जिस तरह से उन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया, उसकी वजह से दूसरे बैट्समैनों पे बहुत प्रेशर आया और वो ज़्यादातर अपनी विकेट गंवा बैठे। आर्म गार्ड अपना चेंज किया है फरहान ने।
साहबजादा फरहान थ्रू द कवर्स बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, 28 साल की इनकी उम्र है, अभी भी बड़ा वक्त इनके पास इंडिविजुअली बाकी है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। से 5 साल पहले PSL के सीजन में शामिल किए गए थे अपनी शानदार परफॉर्मेंस पे, लेकिन उसके बाद से उस पर लिव अप ना कर पाए। राइट ऑन मनी, बेहतरीन बॉलिंग, कोई वेट नहीं दी हाथ खोलने के लिए जा सके और मुताद आगाज अब तक। अच्छा रन लिया है ये फरहान ने। ये पॉइंट एक बड़ा बहुत ही नोटिसेबल है कि ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है इनकी पेशावर की, ये काफ़ी टीमों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम आहंगी काफ़ी है प्लेयर्स के दरमियान, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट साथ खेलते हैं, इसलिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत शानदार। हारिस हारिस के नारे बुलंद हो रहे थे और उसमें खैर मकदम कहा है। नौजवान बैट्समैन ने उठा कर खेला पहले छक्के के लिए, मुख्तसर तरीन बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया, बिहाइंड द स्क्वायर पहला छक्का। प्रीमेडिटेटेड था, पहले से जगह बना ली थी, और लेकिन जब नया बॉल और तेज पेस के बॉलर, आपको कनेक्शन बहुत ही जबरदस्त करना पड़ता है, जो कि उन्होंने किया। और फ्लिक किया, बड़ा गैप है जिसके पीछे भागे हैं गेंद को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। क्राउड के नारों का जवाब दे रहे हैं हारिस अपनी बाउंड्रीज के साथ। पेशावर अपनी डगर पे गामजन 12 बिनक से नुकसान के। बहुत ही अच्छा शॉट, पिछले शॉट पे उन्होंने इनोवेशन दिखाई और इस बार कन्वेंशनल, थोड़ी सी ऑफलाइन थी बॉल, टाइम किया उसको, फ्लिक ऑफ द रिस्ट इसको कहते हैं, और कोई मौका नहीं बाउंड्री के फील्डर के लिए इसको रोकने का। अमर अक्सर बात की जाती है कि T20 वो फॉर्मेट है जिसमें आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, लेकिन फिर ये डिबेट भी रहती है कि क्या कभी कभार आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। लेकिन हारिस का जो कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा सिडनी के सेमीफाइनल में, जब पीछे दिल दिल पाकिस्तान के उस नगमे की सदाएं गूंज रही थी उस स्टेडियम में जहां पर चौका ब्लॉक था और पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। गो कि वहां पर वो उस स्टेज के लिहाज से पूरा ना उतर पाए, लेकिन उन विनिंग मोमेंट्स के लिए, विनिंग शॉट खेलने के लिए स्टेज सेट करके दिया था बाबर और रिजवान ने उनको। तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही आसमान की बुलंदियों में चला जाता है जब आप इतने क्राउड के सामने अपने वतन के लिए कारनामा सर अंजाम देते हैं। लेकिन ये फिर डिबेट रहती है कि आप कितनी जल्दी आए और उसके बाद उस तवक्कुआत के इस दबाव पे पूरा उतर पाए कि नहीं। अहमद दानियाल एक और नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतरीन फर्स्ट क्लास का सीज़न गुजारा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और ये कॉन्फिडेंस जो हासिल होता है आपको टॉप लेवल क्रिकेट खेल के, बड़ा ज़रूरी है कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी खेलें अपने रीजन से आके, तो उसको पास ऑन करें प्लेयर्स में और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, अपने न सिर्फ खेल से बल्कि अपनी बातों से, अपने रवैये से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट और ऊपर खेलते हैं वो नीचे आके क्रिकेट खेलें और एज ए मेंटोर भी काम करें, न सिर्फ अपनी स्किल वाइज लेकिन मेंटोरशिप भी। उठा के खेले, आवाज तो सुनिए। नतीजा जंगलों के पीछे खेलने में कामयाब रहे हैं साहबजादा फरहान का जारहाना शॉट, 6 रन। शानदार टाइमिंग इस बार, बहुत ही जल्दी पिक की लेंथ, शॉर्ट बॉल थी थोड़ी सी, और ये बॉल जंगलों के पीछे, ये देखिए शॉर्ट बॉल बहुत तेजी से पीछे गए और खूबसूरत शॉट स्टैंड्स में जा गिरी। और अब थोड़ा वक्त लगेगा शायद ये बॉल वापस आने में। यह है साहबजादा फरहान आपके लिए, जो कि इस T20 टूर्नामेंट में भी उन्होंने मौके को दोनों हाथों से ग्रैब किया है। सेंचुरी बनाई इन्होंने लाड़काना के खिलाफ, 21 रन बनाए कराची ब्लूज़ के खिलाफ जहां पर मैच में बड़ी ज़रूरत थी फतह हासिल करने की, और कुछ डाउन साइड भी रही है, लेकिन ये आपको वो नहीं दिखा रहा जो उन्होंने फर्स्ट क्लास सीज़न में किया। टॉप रन गेटर थे ये पेशावर की टीम के लिए, और वहां पर उन्होंने हर तरह की कंडीशंस में रन्स बनाए। गो के कराची वाइट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त खेल वहां पे पेश किया। लगता है काफ़ी काम करना पड़ा इनको, और ये
जो शाम के औकात में कराची वाले समोसे अक्सर खाते हैं, ये 3-4 समोसे तो हजम कर सकते हैं जितनी दौड़ इन्होंने लगाई है। और लगता है कि ये जिस तरह मशल लेकर आते हैं ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में और भागते भागते कोई मेजर एथलीट वहाँ पर आ रहा होता है उस हैंड बॉल की तरह, उस अंदाज से ये आए थे, लेकिन लाइमलाइट ज़रूर चुरा लिया इन्होंने। और जो क्राउड की बात है अमर, वो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं खिलाड़ियों का मिलेगा। ना सिर्फ ये कि इनके खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग। आप चाहे कराची में मैच खेल रहे हैं, टोरंटो में या टम्बकटू में, आपको जो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों की फ़ैन फॉलोइंग मिलती है वो लाजवाब है। यहाँ पर भी जितना इफ्तिखार और हारिस वगैरह की मांग होती है वो शायद कराची के लोकल क्रिकेटर्स की भी नहीं होती। और ये आपको बताते चलें कि अभी कराची लाहौर का मुकाबला भी है, जिसको अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए देखने के लिए। राशिद रियाज को इस गेंद को उठा के देना पड़ा है, तो अब गेंद वापस आ गई, जिसकी वजह से हमें तमाम बात करने का मौका मिला। फरहान का कॉन्फिडेंस अपने अरूज पे और अहमद दानियाल को नए सिरे से अपने आप को रिदम को लाना पड़ेगा। जो फैन फॉलोइंग की आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है, और वो उसकी ज़्यादा वजह जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पेशावर खेलती है, जारहाना अंदाज से खेलती है, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, चाहे वो रेड बॉल की हो चाहे वाइट बॉल की हो, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, जीत के लिए खेलें। और ये कॉम्बिनेशन जो इनका बना हुआ है एक बहुत अरसे से, वो इसमें मदद करता है उनकी, और इसी वजह से न सिर्फ पेशावर में बल्कि पेशावर के बाहर भी उनकी इस कदर फैन फॉलोइंग है। और ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि इनके फैंस की अगर आप क्रिकेट के हवाले से समझ पूछ देखते हैं तो वो बड़ी आपको अपने वक्त से आगे की दिखाई देती है। जितने क्लोजली इस गेम की निटी ग्रिटीज़ को, नट्स एंड बोल्ट्स को ये खैबर पख्तूनख्वा वाले फॉलो करते हैं, क्योंकि जब भी इस इलाके के लोगों से बात हो तो वो डीप पड़े जाते हैं और हर चीज़ पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। बड़ी रिमार्केबल बात। हारिस जब तक रहेंगे हलचल ज़रूर रहेगी, और जिस अंदाज से आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स का चर्चा कर रहे थे कि फिट प्लेयर समझे जाते हैं और उसकी वजह से देखने में भी इनको मज़ा आता है। एक मरतबा फिर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, गो कि अभी भी उसके शाया निशान नहीं है जो कि पहले जब खेली जाती थी नेशनल T20 उस वक्त आता था। लेकिन एक्सीलेंट सेटिंग्स हैं, मौसम भी हल्का हल्का सर्द हो रहा है, फिर वीकेंड भी है। यहाँ नौजवान क्रिकेटर्स आपने अभी देखे, बहुत ही खुशाइन बात। कुछ अर्से पहले सलमान बट से भी यही बात हो रही थी कि वो भी बॉल बॉय एक ज़माने में रहे हैं, बाबर आजम बॉल बॉय रहे हैं, और कितनी बेहतरीन क्रिकेट उसके बाद इन दोनों ने खेली। एक कदम आ गया है, ट्रिगर मूवमेंट शानदार पिक किया और रवाना किए। कहिए कि बल्ले के दरमियान से नहीं है, लेकिन माइंड ना कीजिए, ये पावर प्ले है। और दूसरी तरफ साहबजादा फरहान का बल्ला, एक और चौका। सही तरह टाइम नहीं किया, हालांकि इस बॉल को बॉटम पे लगा बल्ले के, लेकिन इतनी उसमें कुव्वत थी कि बाउंड्री के पार चली गई बॉल। ज्यादा शॉट नहीं थी, थोड़ी सी शॉट, बहुत ही कम मार्जिन फास्ट बॉलर्स के लिए इस विकेट पे। जो वक्त गुजर रहा है विकेट बेहतर होती जा रही है, उसकी पेस जो है वो, अगर कहीं पहली इनिंग में भी हालांकि कोई ऐसी बॉल तो नजर नहीं आई एक दो के अलावा, लेकिन अगर कोई डाउट था भी तो वो अब खत्म होता जा रहा है। और जो डाउट बॉलर के जहन में था वो भी अब क्लियर हो रहा है। वो समझ बैठे थे कि शायद यहाँ पे पकड़े जाएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे प्रोटेक्शन देनी पड़ी है मिड विकेट की जानिब, और इसी बायस फाइन लेग के फील्डर अब अंदर आ गए हैं। दोनों फील्डर ऑन साइड पे मौजूद हैं फ्रंट ऑफ स्क्वायर। लेकिन दूसरी तरफ साहबजादा फरहान भी चौकन्ने निकले, लॉन्ग ऑफ की जानिब उन्होंने टारगेट किया है। ऑन दिया ब्रिलियंट शॉट, ये दिन साहबजादा फरहान का है, 28 बिना किसी नुकसान के। तस्वीर खींचने वाली शॉट था ये, देखिए हाफ वॉली और खूबसूरत टाइम किया इसको, और गैप बहुत ही अच्छा, शानदार शॉट था ये। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और दूसरी तरफ लाइट्स कैमरा एक्शन का टाइम भी हो चुका है पेशावर के लिए, और हर तरफ से अब तब्दीली करनी पड़ी है। लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गए हैं गेंद करने के लिए। इरफान 35 मैचेस में 32 विकेट्स का तजर्बा है। पेशावर ने टॉस जीत कर खुद बैटिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद गो के इस मैच का बेहतर हिस्सा, बल्कि लगता है कि ये फतह भी अगर इसी स्पीड के साथ चलते रहे वो सूरज गुरूब होने से पहले ही हासिल कर लेंगे। वो सनसेट से पहले मुकम्मल हो जाता है।
लेकिन जो हाईलाइट होगा इस वीकेंड का वो बड़ा मुकाबला आने को है, जहां लाहौर ब्लूज की टीम कराची वाइट्स के खिलाफ उतरेगी। लाहौर की 2 टीम्स क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की आज़म ने, लेकिन क्या उनके शान शान कर सकेंगे? लंबे कद काट के हामिल हैं, बाउंस भी अच्छा मिलता है इरफान को गेंद करते हुए। और दूसरी जानिब मैन ऑन अ मिशन है हारिस, जो कि बड़े फुर्तीले हैं, फ्रंट फुट पे भी जल जाते हैं, बैक फुट पे भी जल जाते हैं, लेकिन इनका एक इम्तहान शायद होने वाला है हमारे स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। इन पावर प्ले के ओवर्स में ललचाएगा ज़रूर इनका दिल बड़ी शॉट लगाने को। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर लिया और उसके साथ स्क्वायर लेग की बाउंड्री पे मौजूद है। क्या कदमों का इस्तेमाल करेंगे? नो, स्टैंड एंड डिलीवर। जिस तरह की इब्तिदा पेशावर के बैट्समैनों ने की है, मजबूर हो गए मेरे ख्याल से कप्तान इस स्टेज पे जो है स्पिनर लाने में। तीसरा ही ओवर शुरू हुआ है और स्पिनर्स देखने को नजर मिल रहे हैं। बेहतरीन बॉलिंग, इरफान ने फ्लाइट में बीट किया, लेकिन अच्छा ही मुकाबला किया दूसरे जानिब हारिस ने भी, और रिस्पेक्ट दिया स्पिनर को, जो कि अच्छे साइंस लग रहे हैं हारिस की बैटिंग के दौरान। इस T20 में एक चीज ये देखिए, आ गई बॉल। इस T20 में एक चीज वाजे है कि कन्वेंशनल शॉट मारने वाले बैट्समैन जो हैं वो ज्यादा कामयाब हैं। इनोवेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब बॉलिंग की क्वालिटी बेहतर होती है तो अगर आप कन्वेंशनल शॉट्स नहीं मारेंगे, अब वो दौर नहीं रहा कि जैसे बैट्समैन पहले कहते थे कि जी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है तो वो छक्के मारेगा आके। अब हर बैट्समैन के रेपर्टार में जो है वो बड़े शॉट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो छक्के और चौके स्कोर कर सके बगैर रिस्क लिए, बगैर विकेट अपनी गवाए। यस, इसका नमूना हमने देखा जब अहमद शहजाद ऑन सॉन्ग थे, लेकिन इस दौरान बड़ा चेस करना पड़ा है। लगता है कि इसको रिव्यू करना पड़ेगा टेलीविजन अंपायर को, और वहां पे फील्डर की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि शायद वो स्लाइड करते हुए बहुत करीब पहुंच गए बाउंड्री लाइन के। खामोशी के साथ गई थी, लेकिन आउटफील्ड बहुत शार्प और तेज है, जिसके बायस वहां पर लगता है कि इस रेस में हार गए इमरान। इमरान डोगर की अच्छी कोशिश, लेकिन ये देखिए डाइव मारी और देखना पड़ेगा कि बॉल मेरा ख्याल से ठीक है। और ये इससे पिछले फ्रेम में यहाँ पर अगर वो इसके छेड़छाड़ ना करते, जिस प्यार से उन्होंने वापस सिरकाया है, अगर वो शफकत का मुजाहरा ना करते तो चौका बचा सकते थे। और इसी वजह से भारी दिल के साथ इमरान डोगर ने जो पूरी मेहनत की थी वो रायगा गई और एक और चौका मिल गया। काफी बेबस नजर आ रहे थे आखिर में कि समझ नहीं आ रहा था ये क्या करे। बाउंड्री से तो क्रॉस कर ही गए थे, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था उनके पास। और एक मरतबा फिर जो कि इरफान का भी ओवर इसके बरक्स अच्छा चल रहा था, हारिस ने उनको रिस्पेक्ट दी, और ये भी गेंद जिस अंदाज से खेली थी शायद खुद भी तवक्को नहीं कर रहे थे फरहान, जो कि भाग के 2 रन बनाने के लिए वापस आए थे। चौका लगा जरूर, लेकिन ओवर बड़ा अच्छा था इरफान का उनकी रेपुटेशन के मुताबिक। लेकिन पेशावर ऑन अ रोल, 34 ऑलरेडी बिना किसी नुकसान के। ये बच्चे आप देखिए, ये क्रिकेट मेरे ख्याल से अपना मैच खेलने के बाद यहाँ आए हैं मैच देखने के लिए। बड़े सितारों को, बड़े नाम आज दोनों टीमों में मौजूद। हमसे कुछ देर पहले एक्शन पैक मैच मुकम्मल हो चुका है, जहां पर रावलपिंडी ने 180 रन का टारगेट दिया था एबटाबाद को जीतने के लिए। नवाज ने टॉप स्कोर किया और शादाब जो कि टीम को लीड करने के लिए आ गए हैं रावलपिंडी की, उन्होंने भी 42 रन बनाए और वो बहुत साबित हुए एबटाबाद के लिए। वो कि फ़खर जमान भी उनके पास थे, आफाक अहमद ने उसमें टॉप स्कोर किया। फ़खर जमान ने 29 पे 30 बनाए, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे रहे और यूं 32 रन से अपनी पहली बड़ी फतह हासिल कर ली एबटाबाद के खिलाफ शादाब की रावलपिंडी की टीम ने। सियालकोट भी फाटा से अपना पहला मुकाबला जीत चुका है। रोजाना की बुनियाद पर 3 मुकाबले 6 टीम्स इन एक्शन होंगी, और उसके साथ यहाँ पर चौथा मुकाबला भी, तो तमाम 8 टीम्स इन एक्शन होंगी। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, एक सूरज डूबने के बाद
फन बिगिन होगा, जबकि सूरज डूबने से पहले लगता है कि इस मैच में अपना काम कर देगा पेशावर। अगर जीतेगा नहीं तो कम से कम जीत के करीब जरूर पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की। एक मरतबा फिर ये ऑफ द बैक फोर साहबजादा फरहान का बल्ला है, जो कि जल्द गेंद को पिक कर रहे हैं और छोटा काम बनाना चाहते हैं इस मुनासिब टारगेट को चेस करने के लिए। एक और बड़ा छक्का। कोई फायदा नहीं इस लेंथ पे फरहान को बॉल करने का, जिस तरह की फॉर्म में वो हैं। बहुत ही आसान उनके लिए है इस बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकना इस वक्त। बहुत ज्यादा पेस भी इनकी नहीं है और थोड़ा शॉर्ट खूबसूरती से 6 रन हासिल किए। वंस अगेन ऑफ द बैक फुट, लेकिन नतीजा वही बाउंड्री का एरिया उन्होंने मुंतखब किया कवर्स का, और जहां खेल रहे हैं उनका बैट सोना उगल रहा है। 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज। जहां पिछली बॉल पे उन्होंने थोड़ी सी फोर्स दिखाई थी, जोरदार शॉट मारा था, इतना ही खूबसूरत, और आराम से शॉट टाइम किया उसको सिर्फ। ये देखिए बैक फुट पे जाके टाइमिंग, प्योर टाइमिंग, और गैप तलाश किया। सबसे अहम बात ये बला का एतमाद है साहबजादा फरहान के पास। वो मैन ऑफ द मोमेंट है, कराची के सबसे पुरएतमाद शख्स इस वक्त साहबजादा फरहान। 1 वे ट्रैफिक, एक और चौका, बाउंड्रीज की हैट्रिक मुकम्मल कराची में। बैड बॉलिंग, आमिर की खराब बॉलिंग है ये। लेंथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। पहली 2 बॉलें बहुत शॉर्ट, और इस बार थोड़ी सी आगे करने की कोशिश की कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन नतीजा वही। बहुत ज्यादा विड्थ दे दी इस बार, इसका भी ख्याल करना पड़ेगा। लाइन के साथ, लेंथ के साथ लाइन भी बड़ी अहम है। पहला रन तेजी के साथ और एक ही पे इक्तफा करना पड़ेगा। 49 पे पहुंच गए हैं 50 के दहाने पे, और ये इम्कान नजर आ रहा है कि 4 ओवर के अंदर वो टीम के 50 मुकम्मल कर लेंगे। और वो जो इम्कान इब्तिदा में था हमर कि ना सिर्फ ये कि वो टारगेट चेस करें, बल्कि जहां पे 8 टीम्स की ये कशा का शो, वहां पर नेट रन रेट भी माने रखेगा, उसके लिए भी बड़ा एडवांटेज हासिल करें। जो दुनिया में इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट का एक शोर है और जो रिवाज है, उसके सबसे करीब पेशावर की टीम मुझे लगती है। वो कतई नजर इस बात से कि मैच की सिचुएशन क्या है, वो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, अपनी पेस से खेलने की कोशिश करती है, और अपने जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे खेलने की कोशिश करती है। दिस इज फॉर यू 644। ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, ये वो है साहबजादा फरहान है जो कि आके चौकों में डील कर रहे हैं। 2 छक्के भी बड़े लगा चुके हैं। इस ओवर में भी यही कहानी है। जबकि दूसरी जाने मौजूद हैं हारिस, जो कि गहना गए हैं साहबजादा फरहान की इनिंग्स के सामने, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कितने तेज हैं। और एक मरतबा फिर ऑफ द बैकफुट, लेकिन इस मरतबा थे हारिस, खातर में नहीं ला रहे आमिर को। महंगा ओवर 33 रन दिए, 50 भी मुकम्मल पेशावर के। समझिए आधा काम कर दिया पावर प्ले के 4 ओवर के अंदर ही, 55 बिना किसी नुकसान के। पचास रन मुकम्मल हुए पेशावर के। फिर देखें बहुत शॉर्ट, और हारिस के लिए बहुत ही आसानी इसको बाउंड्री के बाहर फेंकने के लिए मिड विकेट के ऊपर से। अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। Lots of difference when it comes to comparison between 2 teams at the same time. Lahore was struggling big time in scoring runs, but Peshawar are on the different level. Close, very close. Not out, says umpire.
That was very close. That was a close call. That looks like impact on off stump. Love to see that again. Oh, improvising. He was trying to make room and suddenly Jailer bowled it wide. But good work done by Haris. Got bat onto it and some healthy bat. Fantastic batting. It threw it wide, slower in pace. And the way he played it shows the form that he's in this game. Umpire is just going to check if it is carried to the 6 or not. I think it has. It has gone straight to the skirting. Will be given a 6. Just having a look at it again, umpire Majid Hussain. But I believe this should be enough. Yeah, it seems like it's hit the ball on the boundary, on the full. Let's find out what the official call is. It's a maximum. .62 already on the board, which now will be the highest score in the power play, and still 1 over to go after this. This is what we were discussing earlier, that if you want to challenge Peshawar, you need to have a score somewhere around 180 or something, 170 maybe. There was a shout for a leg before in this over, which looked mighty close. You'd say that Haris is lucky to be still out there, because the impact seemed to be on the off stump. There's a loud shout. Have a look at this. Pitch is outside off, and then the impact. It is somewhere around, you could say half umpire's call if there was DRS. Picks that one up, just shifting a little outside the off stump so he could open up that square on the onside boundary, that square boundary on the onside, and got a maximum going. Great improvisation. The ball earlier was outside the off stump. He played it over extra cover. This one shifting across, slog sweeping it over square leg. And the authority that he played with, the clarity, superb batting. 68 for none after 5. That's the 5th 6 in the power play. That's maximum number of sixes in power play by any team in the tournament. And also, as I mentioned earlier, still 1 over to go in this power play, but they've already got their highest score in the tournament. They've had a 55, 39, 45, 59. 59 was their previous highest versus Larkana for 1. And looking at how they're going, they might just finish it off inside 10 overs if they keep batting like this. That's the batting power play. Peshawar, look at the number of sixes there, 7. This was before this game. Lahore Whites also have equal number, 7. Salcott on top because they have least number of dot percentage. Flat bat, another boundary. Highest power play in the tournament was 70 for 1 by Abbottabad before this. Now it's 72 with 5 more balls to go. The way they're going to go way ahead of it. He just flat batted it. Fabulous. Not the right choice of ball to be bowling from this end. Catch it. Some good batting, but also you need to see that the quality of bowling in the power play has been pretty ordinary. The fast bowlers have been over pitching it. We saw this boundary, it was the length was not correct, easy to pull. Again, is easy pickings. It's not bowling the correct length, so easy to put them away. Lahore's bowling has been neutralized. 78 now.
Yeah, fearless, fabulous Farhan. The way he's playing, beautiful batting. That 65-meter boundary is helping the cause too. And the length also, as you just said, they've been helped by some average bowling. That length is not right, especially bowling from this end. They're going to go after you. Even the miss hit is carrying to the boundary. Current run rate, 14. Wow. That's better. Just bowl in that area. Just vary your pace also. Outside the off stump, that's the way. That's how you will survive on this pitch. Otherwise, the way these two are batting, it will be finished very soon. Oh, that's gone through. That is very poor. As Farhan brings up his 15 style. 850 for him. That was Umar Akmal, the fielder. What do you mean? This is a great inning by Sahibzada Farhan. Positive, authoritative, and fantastic inning. Nothing's going right. They seem to be all over the place, Lahore Whites. Again, through the gap, power play is coming or bringing a lot of runs here. Very ordinary over, 4-0-6-0-4-4. 18 runs coming off it, power play. Super, number one on the list in this tournament, 86 for no loss. What do you do as a bowler? Very, very limited chance you have, especially bowling from this end, because the boundary on the onside is just 65 yards. And it's been a struggle. 86 for none. Lots of discussion being done. Tayyib Tahir coming all the way to Saad Naseem as Abdul Muqeed signals that this is the end of power play. 6 over done and dusted. And guess what? Peshawar had scored 86 runs without losing a wicket. Yeah, you used the right word, done and dusted by Peshawar. 86 in the power play. It just changes everything. Only 50 runs required. 32 of 14, you can see it on the screen for Haris. Better outing than before. And Sahibzada, having 100 to his name in the tournament, is just carrying on with that form where he left off in the last match. It's all happened when Ahmed Shahzad's wicket fell. From there, they just started nosediving. One, couldn't post a good total. There's a quick single there. And then when they came out with the bowling, they've been flabbergasted. They've just been not allowed to take a breather. They couldn't gather together as a team, as a unit, to understand what's going on. And great strategies from the openers. As soon as a new bowler comes in, attack him, hit him for 18 runs, throw him off his length completely. And you expect that from Peshawar. They'll come hard at you every time you give them opportunity. And they did. When Ahmed lost his wicket on a wrong shot, I think that was the time they really pounced on that opportunity. And then Umar Akmal played a slow inning in the end. And now Lahore Whites are in deep, deep trouble. 90 runs after 7. Current run rate, 12.86. It's all been Peshawar, all the way. Seems like we're watching the highlights, the way these two are batting. 6 is all the way. Some classical wrist work also. Some great improvisation and that hand-eye coordination of Sahibzada Farhan. And some excellent use of feet too. Great running also. Have a look at that for cover drive. Sahibzada Farhan in some form. May it be spinner or a fast bowler. They've been brutal.
Checking the length correctly and depositing it over the ropes. The clarity in mind from both batters, held by some poor fielding and bowling by Lahore Whites. You were just talking about Lahore and where they slipped in the game. You just get an idea with the numbers I'm sharing with you after this ball about where they lost their way. Daniel comes in and he's been greeted in a grand way. That's exactly what I was talking about. A new bowler is introduced or a bowler who's into his second over. He's hit hard on the very first ball. That's the 8th maximum already in the 8th over. They've just been taken by surprise. I don't think so. Lahore White was expecting this firework from both the batters. Well, look at that for a shot. Anywhere you ball, they're going after you. Yeah, I was talking about how Lahore Whites lost their way. So when Ahmed Shahzad was out, the score was 100 in the 15th over. From there on, Lahore only added 36 runs in 38 balls. They just completely lost their way. And now with the bowling, it's in front of you. And second, the no boundary in last 3.3 overs. I don't think so. I have ever seen that happen in T20 cricket, especially one of your top hitter is on crease. That's Umar Akmal. That was a big surprise for me. He was not able to hit those big boundaries which were expected of him. Change of pace there from Ahmed Daniel. They'll have to do this. They'll have to learn from what Peshawar bowlers did. They mixed it up beautifully. Slower ones, the back of the hand deliveries, they will have to do it again. That was the misfield and the 50 for Sahibzada Farhan. 100 also to his name in the tournament. If you can provide that kind of a start to your team, then it takes off a lot of pressure from the batters to come. You hand over the initiative to the batters who are in the middle order, who find it easy then to finish the job. And sometimes he carries the bat, like he did in the last match. And also the worst thing for the other teams is that they've brought Mohammad Haris into form. He was struggling to get runs earlier, but this innings, 17 balls, 34 runs, will give him a lot of confidence. And that's not a good news for other teams, because we know what he is capable of. He can just take the game away from you in no time. Haris and Farhan, we know that he is more of a classical, conventional batter. .136 was never enough. Playing Peshawar, you know the kind of momentum they have. Should have been somewhere, maybe almost, what, 40 short. Should be around 170s. This is the Super 8. And you will find teams who will not spare you. Suddenly the quality of their bowling has diminished completely. We don't see that venom there, what we saw in the round games. But there's still time. You've got to play everyone once, so you can gather, get the think tank together, and get your game plan right. You see that? It's in the air and gone. Is a fielder placed in the deep, and he took him on. And the result that he's been dismissed, but he's done the job. Yeah, one shot too many. Picking up the length. Playing it straight to the hands of the fielder. Kamran Afzal taking a good catch at cow corner. They needed this. A touch late, but still for their own confidence, they needed this wicket. Shouldn't be a problem there. There is no problem. Sahibzada Farhan can continue walking back. The length was there. Not quite there, actually. Touch fuller for this shot. Kamran Afzal taking a good catch to see the back of Sahibzada Farhan, who played a fantastic inning of 64, just 31 deliveries. It's 98 for 1.
साद नसीम इस तमाम में गेंद करने के लिए आ रहे हैं, जहां पे विकेट तो हासिल हुई है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो उनके लिए कोई माने रखेगी। दूसरी जानिब नौजवान आमिर अजमत आए हैं बैटिंग के लिए, जो कि इस टूर्नामेंट में अपनी एक 50 हासिल कर चुके हैं, इनके करियर की वाहिद। दूसरी जानिब हारिस ने चार्ज को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। बेहतरीन मौका है अपनी फॉर्म को हासिल करने का और कंटिन्यू करने का इस सुपर 8 मरहले की इब्तिदा में नौजवान आमिर अजमत के लिए। दूसरी तरफ उनके साथ मौजूद हैं हारिस, जिन्होंने अपनी फॉर्म को हासिल किया है। साद नसीम का तजर्बा बहुत है, लेकिन बॉलिंग करते हुए इतनी खातिर कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। 37 विकेट हासिल किए हैं। आते ही गैप में निकालने की कोशिश की है। अच्छा मौका है, ना सिर्फ ये कि ये अपने 100 रन को मुकम्मल कर चुके हैं, फतह को हासिल करें, बल्कि पलक झपकते में इस टोटल तक पहुंच जाएं। ऊंचा खेलने के लिए चले गए थे साहबजादा फरहान, जिन्होंने अपनी जगह पे खड़े खड़े शॉट को खेला, इसकी लेंथ में चूक गए और पूरा डिस्टेंस भी देने में कामयाब ना हो सके। एक मरतबा फिर लंबा चेज है, लेकिन एक ही रन पे इक्तफा करेंगे। तो टारगेट आसान और इसके लिए एक ही माइंड बना कर आए थे, जो कि पेशावर की टीम का खासा है। इस टूर्नामेंट में तेज तरीन बैटिंग करने के लिहाज से पावर प्लेस में भी टॉप ऑफ द लाइन टीम्स में शुमार होती है, और आज उन्होंने बेहतरीन शुरुआत की है। हर तरह के बॉलर को आड़े हाथों लिया और इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया। इफ्तिखार का भी आना बाकी है, और लगता बज़ाहिर यही है कि अगर वो आए भी तो कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करने को नहीं बचेगा। एक कर्टेसी है उन डेथ ओवर्स की बेहतरीन बॉलिंग के, जो पेशावर ने जाते जाते की। मीनिंगफुल मौके हैं तमाम खिलाड़ियों के लिए। ये वो सीज़न है जिसमें ना सिर्फ ये कि PSL के ड्राफ्ट होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ T20 का वर्ल्ड कप का साल, और उसके लिए टैलेंट प्रूव करने का बेहतरीन मौका। साद नसीम का पहला ओवर, सिर्फ 4 रन दिए 102 पे। कराची की खूबसूरत और हल्की हल्की सर्द होती हुई शाम, यहाँ पे क्रिकेट अपने रूज पे है, और टपाल टी का हर मौका ही अच्छा होता है, और ये मौका उससे भी बेहतरीन है टी को एंजॉय करने का। कराची और लाहौर का मुकाबला आने को है, लेकिन इस मौके पर लाहौर वाइट्स की टीम ने समझिए कि आधे रन बनाए थे पेशावर के खिलाफ, और एक स्ट्रॉन्ग कारकर्दगी के साथ वन वे ट्रैफिक को जारी रखा हुआ है, कर्टसी पहले साहबजादा फरहान की और हारिस की इस इनिंग्स की बदौलत। 98 रन पे जाकर ये पहली विकेट हासिल हुई है लाहौर वाइट्स को, और लगता है नहीं कि ज़्यादा माने रख सकेगी। और इस इनिंग्स के साथ हुआ यह है कि लाहौर के लिए लाइन और लेंथ के प्रॉब्लम्स अचानक से आन पड़े, और उनको अपने आप को आने वाले मैचेस के लिए एक बड़े दबाव में जाकर दोबारा से वापस रिदम में आना पड़ेगा। सामने मौजूद है नौजवान आमिर, जो कि अपने इस फॉर्म को मजीद दवाम दे सकते हैं। 50 बनाई हुई है। सलमान शानदार बैटिंग के परफॉर्मेंस और अपने जो रेपुटेशन है उसके शान शान खेले अब तक पेशावर की टीम। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इन्होंने तो तकरीबन तहस नहस कर दिया है लाहौर के बॉलिंग अटैक को, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग पावर प्ले खेला है हारिस ने। और साहिबजादा फरहान की जो उस सेंचुरी के बाद जो फॉर्म है उसका फ्लो पूरे ज़ोर शोर से जारी है, और बहुत अच्छे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं लाहौर ने बॉलिंग बिल्कुल ऐसे की कि जैसे वो हिम्मत हार चुके थे। फुल टॉस हासिल हो गई। हारिस कान छोड़ने वाले थे इसको, लेकिन उनको वो शायद जल्द पिक करने का मौका न मिला और सिर्फ एक रन के लिए खेल पाए। नो बॉल को चेक कर रहे हैं, गेंद डिप कर रही थी हारिस पे, तो शायद उतना प्रॉब्लम ना हो। हारिस ने भी अब तक अच्छी बैटिंग की है, और वो जो इनिंग्स को लॉन्जेविटी देने का सवाल है सलमान, उसका जो उनको मौका मिला है, और ये जो विनिंग स्ट्रोक खेलते हुए आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है। आप खेलने के लिए आते हैं, आप एक फायरी किस्म का स्टार्ट दें, लेकिन इसके बावजूद आप इनिंग्स को एंड ना कर सकें या फिनिश करने के करीब ना पहुंचा सकें, वो भी शायद इनके कॉन्फिडेंस में तब्दीली लेकर आता है। ये वो मोमेंट है जो कि चेक करेगा कि क्या वेस्ट हाइट से ऊपर थी कि नहीं। जी बिल्कुल, फ्रंट फुट तो परफेक्ट है, हाफ एंड हाफ, लेकिन डेफिनेटली लगा ऐसे ही था कि जैसे वेस्ट से ऊपर आई है। और यहाँ ये बात जो है बिल्कुल क्लियरली साबित होती है कि ये अंपायर की राइट कॉल होगी, क्योंकि उन्होंने इसको जस्ट डबल चेक करने के लिए पूछा है, और नज़र तो यही आ रहा है क्लियरली। और
अब आप अंपायर राशिद रियाज की जो कॉल है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये नो बॉल है और आई थिंक फ़ायदा नहीं उठा सके हारिस जैसे आपने कहा, लेकिन अच्छी चीज़ है कि वो अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं और अगर वो मैच फिनिश करते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका अगले आने वाले मैचेस के लिए। आमिर एक मरतबा पे स्ट्राइक पर है, फील्ड वाइड स्प्रेड है, पावर प्ले के ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और शायद एक आपको खामोशी दिखेगी इन दरमियान के ओवर्स में। चेंज करने का फैसला किया, स्क्वेलेग से फील्डर अंदर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पे प्रोटेक्शन लिया, मुख्तसर बाउंड्री है साइड पे। आमिर असमत ने अब तक अपने हाथ खोलने का फैसला नहीं किया, बड़ी ज़बरदस्त स्लोअर बंद करते हैं अब तक दानियाल भी, लेकिन आज बड़ी मुश्किल आन पड़ी है इब्तदाई ओवर्स में बैकफुट पे जाने के बाद। फ्री हिट पे हाथ खोलने के लिए गए थे जिसकी जरूरत भी थी और फायदा मिला आमिर असमत को, चौका गो के ये उनके लिए आइडियल नहीं था, लेकिन एक तो फ्री हिट, दूसरे 4 रन कबूल करेंगे। शॉर्ट बॉल था, शॉट ऑफ गुड लेंथ कहिए, और इसके ऑफ स्टंप से हल्का सा बाहर पूरा रूम मिला उन्हें अपने आर्म्स को स्विंग करने का। शायद इसको मिड विकेट या मिड ऑन की तरफ हिट करना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद 4 रन पार कर गई बाउंड्री को और पेशावर जो है अपनी जीत के करीब जाते हुए। सलमान सुपर 8 मरहले की शुरुआत है, बड़ा एक मुश्किल कैंप होगा अगर इस अंदाज से कोई और कमबैक नहीं कर पाता लाहौर और बड़ी शिकस्त की जानिब जाता है तो ड्रेसिंग रूम में उनको पिकअप करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास जो सब कुछ बेहतरीन आपके पास खिलाड़ी थे आपने उतारे, गेस्ट प्लेयर भी उतारे, लेकिन ऐसी शिकस्त के बाद अपने आप को गैदर करना किस अंदाज से देखेंगे उनकी टीम के लिए? देखिए बॉलिंग पेशावर ने बहुत अच्छी की, ऑल्दो अहमद शहजाद बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनकी शानदार फॉर्म है, लेकिन उस मोमेंट पे जहाँ पे वो आउट हुए उसके बाद हमने देखा कि बाउंड्रीज बिल्कुल ड्राई अप हो गई। तो एक इन फॉर्म बैटर का यहाँ पर पूरा खेलना ज़रूरी, जबकि सामने वाले प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म ना कर रहे हों। जैसे अहमद शहजाद के आउट होने के बाद से हुआ ये कि 38 गेंदों पे महज ये 30 रन हासिल कर पाए। जब ये आउट हुए थे तो पूरे 100 रन इनके मुकम्मल हुए थे, 14.4 ओवर का खेल था और स्टेज सेट हो चुका था। लेकिन लाहौर के लिए जो उनकी रेपुटेशन है, जहां से आपको स्ट्रॉन्ग बैटर्स भी आते रहे हैं और उसके साथ साथ हर शोबे के खिलाड़ी उनके पास आए हैं, क्लब क्रिकेट का तो जो पूरा सिस्टम है आप बड़े क्लोजली उसको आई एम श्योर के फॉलो भी करते हैं। उसके बाद कहीं कहीं आपको लगेगा कि शायद वो जो नौजवान खून आपको हासिल करना पड़ा उसमें कहीं कमी है। चूँकि टूर्नामेंट का मिडवे है और या फिर सीज़न भी अपने पीक पे है, तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हो, लेकिन एक मरतबा फिर अपने आप को शायद स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। लॉन्ग ऑन के फील्डर हम अंदर आ गए हैं, उठा कर खेला हारिस ने और खूब फाइल मौजूद है इसमें, गेंद जाती चली गई, छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया हारिस ने छक्के के साथ। हारिस जो है वो अपनी फॉर्म को बढ़ाते हुए और बरकरार रखते हुए एक खूबसूरत स्ट्रोक काउ कॉर्नर के ऊपर, और अहमद दानियाल का जो स्लोअर वन था उसे बड़ी जल्दी भांप गए थे। और फिर हारिस के बुलंद होते हुए नारों में उठाकर खेले और पूरे खैर मकदम किया है क्राउड के शोर का, बैक टू बैक छक्कों के साथ जीत के दहाने पे पहुंचा दिया हारिस ने। डगआउट पेशावर का बहुत ही सेटिस्फाइड फेसेस हैं और उन्हें पता है कि जीत के बिल्कुल करीब हैं। 10 ओवर्स के बाद 122 पर 1, और हारिस जो हैं उनको उन्हीं के जोन में बॉल किए जाएंगे तो हारिस तो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और समर जो आपका अकील आपके जो सवाल था काफ़ी तवील था लाहौर की क्लब क्रिकेट और टैलेंट को लेकर, लेकिन पिछले 3 सालों में क्लब क्रिकेट इसलिए नहीं हो सकी वहाँ पर क्योंकि क्लब क्रिकेट आबाद रखते थे वो प्लेयर्स जो डिपार्टमेंट से पेड होते थे। तो जब उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई या वो सीटों पर चले गए तो क्लब क्रिकेट जो है वो आपकी तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो गई और उसमें सिर्फ एज ग्रुप्स के बच्चे रह गए थे। तो वो जो अब 3-4 साल का डेफिसिट है वो अब आप अचानक तो नहीं मिलने लगा आपको। और अब ये शॉट हवा में है, मिड ऑन के फील्डर आगे आए लेकिन उनसे पहले ही बॉल जो है वो ज़मीन पर गिर चुका था और 1 रन बना। लूज बॉल था, उसे पुल करने में नाकाम रहे आमिर अजमत।
तो एज क्रिकेट में हम एक्सपेक्ट करें कि क्योंकि जाहिर बात है कि पेशावर से तो बड़ा टैलेंट आ रहा है और लाहौर के लिए भी इसमें लाभ हाला मौजूद होगा। उठा कर खेल रहे हैं हर गेंद पर, सिर्फ एक रन बना पाएंगे तो तवक्को तो करनी चाहिए कि लाहौर को ऐसी कुमक मिलेगी जिसमें कोई हासिल कर गए, लेकिन हारिस इस दौरान अपने 50 रन मुकम्मल कर गए हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ अपने 50 रन मुकम्मल किए। ग्रेट इनिंग सोफा। बहुत इंपॉर्टेंट नॉक है हारिस के लिए, और स्पेशली अपकमिंग जो क्रिकेट है पाकिस्तान की, और ये एक सेकंड कीपर के तौर पे T20 क्रिकेट में अक्सर देखे जाते हैं, तो इनका फॉर्म में आना और लंबा खेलना जो है ये खुशाइंद है। एक मरतबा फिर गेंद के नीचे आए आमिर और फिजाई रास्ता बेशुमार देते हुए गेंद जाती चली गई। पहला मैक्सिमम लगाने का मौका मिला है आमिर को, अपना हिस्सा डाला इस वन वे ट्रैफिक में। अच्छा कदमों का इस्तेमाल था आमिर का, और अच्छी हेड पोजीशन, फुल आर्म एक्सटेंशन और पूरा मिडल किया स्कोर। एक बहुत बड़ा छक्का लगाया इन्होंने, और ये भी एक्ट में आ गए हैं। वायरल होती है इस तरह की बैटिंग जिस तरह हारिस कर रहे हैं, और सामने एंड पे भी उसके असरात जो हैं वाजे नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ कह लीजिए 7 रन दूर है पेशावर की टीम, और टपाल टी कॉर्नर के अंदर लोग इस शाम का मजा एंजॉय करते हुए और क्रिकेट को टपाल टी के साथ। आउट हो जाएंगे। आमिर ने इस मैच को जल्द खत्म करने की कोशिश की, बहुत आगे निकल गए थे कश्तियां जला के। फ्रंट फुट का चेक, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है फ्रंट फुट साद का, और इस बॉल को दोबारा बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना चाहते थे और शायद इस मैच को यहीं क्लोज करना चाह रहे थे, लेकिन ये बॉल टर्न हुआ और काफ़ी दूर भी था उनसे। प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक, पहले से सोच चुके थे कि क्या करना है, और इखलाक ने इस बार कोई गलती नहीं की। और आमिर अजमत यूजलेस इस मोमेंट के ऊपर इस तरह का आप हिट लगाने जा रहे हैं। पहला मैच है ना, कोई रन रेट का मसला है, आप तकरीबन 12 रन के रन रेट से खेल रहे हैं, बट इसको आप यही कहेंगे कि ये जज्बाती स्ट्रोक था। एक्सूबरेंस ऑफ यूथ इस शॉट के अंदर साफ नज़र आई। अभी तो 7 रन है, आप हारिस को खिलाइए, खुद भी नॉट आउट जाएं और अपनी टीम का मार्जिन बड़ा करें विक्ट्री का। और अब आ गए नबी गोल, बाकी रन्स इनकी कोशिश होगी कि ये करें और मजीद विकेट्स ना गिरें। ये कप्तान ने विकेट हासिल की, लेकिन पेशावर जीत के करीब पहुंच चुकी है। महज 7 रन दरकार है फतह के लिए। एक स्लिप लेने का फैसला किया है, जाते जाते कुछ ना कुछ जरूर देगी इस मैच में लाहौर की टीम को। कामयाब ओवर मुकम्मल कप्तान साद नसीम का, 130 पे 2। तो ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने का इतना वक्त नहीं है सलमान। अब बैक टू बैक तमाम टीम्स के पास मैचेस हैं, और शायद जो कि आपको डी ब्रीफ ऐसे मुकाबलों से मिल सके वो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो एरियाज लाहौर के लिए रिकवर करने को होंगे उसमें इनके जो स्टार परफॉर्मर्स को दोबारा उठ के आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने रन स्कोर किए। उमर अकमल ने 49, अहमद शहजाद एक और 50 करके गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ शायद उनको जो दरमियान के ओवर्स थे उसको भी तेज़ और बेहतर खेलना पड़ेगा ताकि अपनी टीम को अच्छा टोटल दे सकें, खासतौर पर पहले बैटिंग करते हुए। तो जो इनके पास कमबैक का वक्त आमतौर पर दीगर टूर्नामेंट्स में होता है, इसमें आप सुनने वालों को भी देखने वालों को याद कराते चलेंगे बैक टू बैक मैचेस हैं। देखिए मुकाबले तो बैक टू बैक हैं, और ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि आप जाके ड्राइंग बोर्ड पे जाएं या वापस प्रैक्टिस सेशंस में जाएं। आपने सिर्फ अपनी चीज़ों को ठीक करना है, और ये सीनियर इनफ हैं, एक्सपीरियंस्ड इनफ हैं ये प्लेयर्स, इन्हें पता होना चाहिए कि इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इस बार कट किया 1 रन के लिए, और पहला रन तेज़ दिया लेकिन एक ही बनेगा। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि अहमद शहजाद के अलावा भी बैटर्स जिम्मेदारी लें, क्योंकि एक बैटर के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। अहमद शानदार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकियों का फॉर्म में ना आना उन पे मजीद प्रेशर को बढ़ाता है।
यस, और दूसरी जानिब अगर पेशावर की इस जीत की जानिब देखते हैं तो वो ना सिर्फ ये कि बड़ी क्विक है बल्कि इसके साथ संग रेट में भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उठान देगी। जाहिर है यहाँ पर 2 रन्स की ताक में है हारिस, लेकिन नहीं होंगे। फील्डर ने अच्छी ग्राउंड कवर की और रिस्ट्रिक्ट किया उन्हें 1 रन तक। अब एक बाउंड्री अवे है पेशावर की टीम। 133 पे 2 हैं। एक और मुकाबला आने को है। कराची वाइट्स और लाहौर ब्लूज एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगी। कराची वर्सेस लाहौर आज की जुमे की शाम। अगले ओवर तक का इंतजार शायद करना पड़ेगा पेशावर को फतह के लिए। 133 पे 2। ऑफ द बैक फुट हारिस को एक मरतबा फिर ये विनिंग स्ट्रोक खेलने का मौका मिलेगा, जिन्होंने फेमसली जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के फाइनल तक रसाई हासिल की वहां पर आखिरी लम्हात में मौजूद थे। और ये कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर नौजवान बैटर के लिए माने रखेगा। उठा दिया है गेंद को, फील्डर के लिए कोशिश का मौका और बेहतरीन अंदाज से जज करके कैच को मुकम्मल कर लिया साद खान ने। मजीद इंतजार करना पड़ेगा। पेशावर को फतह का एक और पड़ा हुआ है साद नसीम की दूसरी विकेट की सूरत में। एक और वैसा ही विकेट जैसा पहले आमिर अजमत ने अपना विकेट दिया। और यहाँ पे हारिस जो कि एक बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली 52 रन की, उसके बाद छक्के के साथ इस मैच को फिनिश करना चाहते थे लेकिन इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए। और साद नसीम की दूसरी विकेट। और यहाँ पर फ्रंट फुट का चेक है लेकिन इनका पाँव वापस आता है और देखिए बिल्कुल अपनी जगह पर आया जहां होना चाहिए। हील बिहाइंड द लाइन है और शॉर्ट पिच बॉल था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने की है यहाँ पे बैटर्स के लिए कि जब आपको लूज बॉल मिला है, इतनी बड़ी पॉकेट्स हैं इस ग्राउंड में, आप गैप में मारने की कोशिश करें ताकि अगर टाइम नहीं हुआ तो चौका हो जाए, 2 रन हो जाए, या अगर कैच भी होता है तो फील्डर को एफर्ट करनी पड़े। लेकिन जब आप फील्डर को ऊपर से उसके गुजारने जाते हैं तो फिर जब आपकी टाइमिंग ना हो तो सीधा यही होता है जो हुआ है, कैच हो जाता है। तो आई थिंक ये बैटर्स को सोचना है कि जब बड़ा हिट मारना है तो कोशिश करें वो भी गैप में मारें, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक बॉल पे छक्का चाहिए कि जहाँ भी लग जाए। इफ्तिखार आए हैं, मैन इन फॉर्म और कैप्टन भी हैं पेशावर के। और अब मुझे लगता है कि ये तसल्ली से इसको फिनिश करेंगे, इस तरह की गलती अब नहीं दोहराएंगे। एक राउंड के लिए अच्छा हुआ हारिस के जाने के बाद, बल्कि उससे पहले से मुंतजर थे इफ्तिखार के नारे बुलंद करते हुए। इनके ग्लोब ट्रॉटर हैं, 230 मैचेस इन्होंने खेल रखे हैं, 100 भी फेमसली बनाई, 30 50s बना रखी हैं इस फॉर्मेट ऑफ द गेम में। 4500 रन, लेकिन यहाँ पे महज 4 रन हासिल करने हैं। फतह हासिल करने के लिए इनके कप्तान को इसी ओवर में मौका मिलेगा। कप्तान को गेंद करने के लिए तैयार हैं। पेशावर की स्टार स्टडेड टीम है, बड़ी एक फायरी किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस इनकी हमेशा से आई है। और ख़ास तौर पर ये पिछली कोई एक दहाई के दौरान, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली कोई 7-8 सालों में मुकम्मल तौर पर आपको हर सीज़न में 2-3 खिलाड़ी आते हुए नज़र आ रहे हैं इनके सूबे से। और ख़ास तौर पर इस फॉर्मेट में तो लाजवाब इनकी परफॉर्मेंस रही है। कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी एज क्रिकेट के गेम हो, हर जगह पे इन्होंने परफॉर्म किया। बड़ा टैलेंट आ रहा है सलमान इस सूबे और ख़ास तौर पर पेशावर से। देखिए वक्त होता है हर चीज़ का। एक वक्त था कि जब लाहौर कराची से ही ज़्यादातर प्लेयर्स जो थे वो डोमिनेट करते थे क्रिकेट को, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि मोस्ट डोमिनेंट प्लेस जो है, जहाँ से टैलेंट भी उभर के आ रहा है, वो KP है। और ये खुशाइन चीज़ है। और हर जगह और हर जो है कह लीजिए कि पॉपुलेशन का एक वक्त होता है कि वहाँ से आपको स्टार्स मिलते हैं, एंड दिस टाइम इज़ देयर्स। और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी इसको फुली इंजॉय भी करना चाहिए और एंडोर्स भी करना चाहिए। और जो चीज़ें ये लोग अच्छी कर रहे होंगे अपने वहाँ पर, हम सबको वो अप्लाई करनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर जेन्युइनली पाकिस्तान के लिए बहुत सारा टैलेंट केपी से बाहर आ रहा है। यस सलमान, पीएसएल की भी आमद है। अभी तो देखना होगा कि वहाँ पे स्टेडियम की तैयारी कितनी है, लेकिन अगर इस अंदाज के टूर्नामेंट वहाँ पे भी मुनक्किद होंगे तो उससे जो क्राउड को इन्वॉल्व होकर या फिर अपने सामने इन क्रिकेटर्स को देख के मौका मिलता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी दूसरे शहर में चले जाएं वहाँ पर इनके इतने फैंस आते हैं तो ये सिर्फ आपके तसव्वुर की इंतहा है कि आप सोचें कि इनके अपने अगर अरबाब न्याज स्टेडियम में ये मैच हो रहा होगा तो वहाँ पे कितने क्राउड आएंगे। तो उम्मीद है कि जल्द वहाँ पे भी मुकाबले मुनक्किद हो सकेंगे और इसी जोबन के साथ बल्कि इससे भी बेहतर होंगे। स्कोर लेवल हो चुके हैं इस दौरान, खामोशी के साथ बला का सुकूत है इफ्तिखार के चेहरे पे, लेकिन क्या वो कोई हीरोइक समेटना चाहेंगे? फील्डर ऐसे ऊपर आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आखिरी ओवर का खेल हो, लेकिन महज एक रन हो सकता है ओवर द टॉप जाने की कोशिश करें। ये देखिए सब आ गए अंदर, लेकिन इफ्तिखार ने सबको भरपूर जवाब दिया विनिंग स्ट्रोक के लिए। छक्के के साथ इन स्टाइल मैच को फिनिश किया। पेशावर जीत गया 1 वे ट्रैफिक 7 विकेट से। जी हाँ, तमाम फील्डर्स जो हैं वो दायरे में आ गए थे और यहाँ पर देखिए डगआउट के सीन्स और हैप्पी सीन्स। एक टीम जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो बहुत सारे फाइनल्स जीत चुकी है और बहुत सारे सीजन से अच्छा कर रही है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग और फिटिंग फिनिश उनके लिए उनके कप्तान ने छक्का लगा के की और इस टाइम पर दोनों टीम्स जो हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। आई थिंक इट वाज प्रीटी कन्विंसिंग। बहुत ही आसान विक्ट्री है ये पेशावर के लिए और देखिए बड़ी तसल्ली के साथ पूरा वक्त लिया उन्होंने। एक शॉर्ट बॉल था जिसको टाइम किया और सीधा अंपायर के सर के ऊपर से छक्का लगाया। पेशावर की टीम जो है उसने अपनी अराइवल इन द टॉप 8 सुपर 8 अनाउंस कर दी है और की भी चैंपियंस की तरह। इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री है ये। लाहौर को एक मरतबा फिर अपने आप को रीग्रुप करना पड़ेगा। रोजाना के हिसाब से मैचेस हैं, लेकिन पेशावर ने अपनी रेपुटेशन के शान फतह हासिल की है, जहां पर ऑल राउंड एफर्ट। ना सिर्फ ये कि पहले इनके बॉलर्स ने ड्रीम फिनिश किया, विकेट्स की भी फ्लरी आखिर में उन्होंने हासिल की, लेकिन उससे पहले जो रन्स को रोकने का दबाव था सेट बैट्समैन के होते हुए वो बड़ी स्मार्ट बॉलिंग का मुजाहरा था। पूरी टीम को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने आखिरी 3.3 ओवर में एक बाउंड्री भी ना लगने दी और अहमद शहजाद का आउट होना इस मैच का और ख़ास तौर पर उस इनिंग्स का स्पेसिफिकली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद ये 3 विकेट्स इन्होंने हासिल तो की लेकिन किसी भी मौके पर ये नहीं लग सका कि इनकी टीम ठीक जगह पे वापस आ सकेगी। वेल डन टू पेशावर एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल देयर फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिन्होंने अपनी टीम को बैक किया और एक मरतबा फिर इन्हें यादगार मोमेंट्स को समेटा है। ये वो टीम है जिसमें यूथ भी मौजूद है और उसके साथ साथ इफ्तिखार और साहबजादा फरहान का तजर्बा भी और उसके साथ आंखों में ख्वाब भी, जो कि इस टूर्नामेंट के फाइनल को खेलने और उसको जीतने के और उसके साथ साथ अपने वो तमाम इंडिविजुअल टारगेट जो कि वो हासिल करना चाहते हैं अपने रिस्पेक्टिव टीम्स में वापस आने के लिए। तो ये ख्वाब सजाए बड़ी फतह हासिल कर लिया है पेशावर की स्ट्रॉन्ग टीम ने और एक एंटरटेनिंग क्रिकेट का भरपूर नज़ारा पेश किया कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में और इसके ज़रिए से अपनी नेट रन रेट को भी उन्होंने बेहतरीन उठान दे दिया है। पेशावर के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई। हारिस और फरहान ने जो शुरुआत दी थी वो 98 रन्स तक लेके गई और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये चंद लम्हात के मरहूने में था इस मैच को जीतना। आमिर ने 15 रन्स का हिस्सा डाला, फिनिशिंग टचेस देने के लिए इफ्तिखार आए, सब कुछ ठीक था पेशावर के लिए इस इनिंग्स में। छह बॉलर आजमाए लाहौर के कप्तान साद नसीम ने अपने समेत, लेकिन जब तक उनको गेंद करने के लिए आने का मौका मिला उन्होंने 2 विकेट्स भी हासिल की। आधे से ज़्यादा काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका था। हर एक को आड़े हाथों लिया, खासतौर पर आमिर को जिन्होंने 2 ओवर में 33 रन दिए, जिसमें से उनका 1 ओवर 21 दे गया। दानियाल ने 3 ओवर में 44 रन का पहाड़ अपने ऊपर लादा और सिर्फ इनकी 2 विकेट्स कप्तान और दानियाल की 1 विकेट थी जो कि उनको कुछ मोमेंट दे सकी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पड़ाव साबित हो सके और ये कोई बड़ा डेंट ना डाल सके पेशावर की इनिंग्स में।
साहबजादा फरहान और नौजवान हारिस इनिंग्स की शुरुआत के लिए आए थे। टारगेट इनके सामने आसान था और उसको उन्होंने वन वे ट्रैफिक में चेंज किया। इब्तिदा में इनके फ्लिक शॉट्स जो कि आते रहे, लेकिन उसके बाद जब लेंथ चेंज हुई तो ऑफ द बैक फुट हाथ खोलने का मौका मिला और जब फील्ड को ऑन साइड पे लिया तो उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए से रन्स का अंबार लगा डाला। साहबजादा फरहान का ये ख्वाब सा सीजन चल रहा है जिसमें से पहले उन्होंने सेंचुरी में मुकम्मल किया, लेकिन आज 50 रन्स मुकम्मल करने के लिए गए और 98 रन्स की पार्टनरशिप थी जिसने आन की आन में मैच का पांसा एक तरफ करके रख दिया। साहबजादा फरहान को अपनी एक और 50 मुकम्मल करने का मौका मिला। इनका ख्वाब जारी रहा, लेकिन इस दौरान उनकी विकेट जरूर हासिल हुई थी जो कि सिर्फ एक पड़ाव का बायस बन सकी इन इब्तदाई 10 ओवर में। उसके साथ साथ हारिस का ऑन स्लॉट जारी रहा। ये पेशावर का जगरनॉट है जिसने लाहौर को आड़े हाथों लिया और यूं हारिस भी अपने 50 रन 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ मुकम्मल करने में कामयाब रहे। आमिर अजमत बज़ाहिर मैच को फिनिश करना चाहते थे, दूसरी जानिब हारिस भी, लेकिन ये सिर्फ आखिरी लम्हात में तमानियत दे सके, कोई मानी क्रिएट न कर सके। इफ्तिखार ने आकर विनिंग स्ट्रोक लगाया और फिटिंगली इस मैच को फिनिश किया। पेशावर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का बिल्कुल ठीक फैसला किया, जहां पर अहमद शहजाद ने अपनी एक और 50 तो मुकम्मल की, लेकिन उनकी टीम के यूं काम ना आ सकी। उनके आउट होते ही ये डाउनफॉल का शिकार रही अपने बैटिंग रेट के लिहाज से। उमर अकमल ने भी 49 रन बनाए, 136 तक पहुंची लाहौर की टीम। अब पेशावर ने महज 13.1 ओवर में टारगेट को इन स्टाइल हासिल कर लिया और 7 विकेट से नेट रन रेट में बड़ी उड़ान हासिल करते हुए फतह हासिल की। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैच की प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ होंगे।
Welcome to the presentation of one of the Super 8 games here at the National T20. It was Peshawar versus Lahore Whites, and what a comprehensive win for Peshawar. Won the toss and then chased it down with absolute ease. We'll give away the awards, but before that, I will introduce our guest who will be presenting the trophy and the cash awards, Mr. Arshad Khan, Senior General Manager at National Bank Stadium. Thank you for joining us. And Mr. Arshad Khan will now present the Outstanding Performance Cash Award, and that is for 25,000 rupees, and that goes to Mohammad Haris for his 52 of 28 balls. It had 6 sixes and 1 boundary. शानदार performance Mohammad Haris की. सिर्फ 28 गेंदों पे 52 बनाए, 6 छक्के और 1 चौका लगाया. Now, again, Mr. Arshad Khan will present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000, and that goes to Sahibzada Farhan for his brilliant form that he's carrying on with 54 of 31 balls. It had 4 sixes and 8 boundaries. 4 छक्के और 8 चौके लगाए 54 के स्कोर में 31 गेंदों पे, and he wins the Jazz Player of the Match award. साहबजादा बहुत शानदार फॉर्म चल रहा है, पिछले में 100 और अब यहाँ पे चेस करने गए थे. ऑब्वियसली बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन यही प्लान था कि जितना जल्दी खत्म करें, या बॉल अच्छा लग रहा था? देखिए, जिस तरह मैंने लास्ट मैच में किया था, तो मैं शुरू में मेरे माइंड में था कि इस फ्लो को कंटिन्यू रखूँ, और जिस तरह इफ्ती भाई ने कहा था कि अपना इंटेंट पॉजिटिव रखने हैं, तो माशाल्लाह उसी तरह हम खेल रहे थे. क्या चेंजेस लाए हैं, क्योंकि नेशनल T20 में स्टार्ट में पहले 3 मैचेस में नहीं हुआ स्कोर, कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स किए हैं कि अब जो है पूरा आ रहा है बॉल? देखिए, लाजमी बात है, कुछ ऊंच नीच होती है, लेकिन उस पर काम किया, प्रैक्टिस किया उस शॉट्स पे, तो माशाल्लाह मैंने पिछले टाइम भी यही कहा था कि इंशाल्लाह जो लाइव मैचेस हैं इंशाल्लाह उसमें मैं रन्स करूंगा. चलिए, कांग्रेचुलेशंस, और बहुत मजा आया आपकी बैटिंग देख के. थैंक यू. Sahibzada Farhan, the Jazz Player of the Match. Now I'll speak to Saad Naseem, the captain of Lahore Whites. साथ 14th ओवर तक 100 रन हो गए थे जब अहमद शहजाद आउट हुए. उसके बाद आपकी टीम सिर्फ 38 रन ही ऐड कर सकी 6 ओवर्स में. जी बिल्कुल, जो लास्ट 6 ओवर थे ना, उसके अंदर हम जिस तरह हमारा प्लान था कि 60 से 70 रन होने चाहिए, विकेट इन हैंड थी, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उनकी बॉलिंग को, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने वो डिफेंड किया है. अच्छा, हम बात कर रहे थे मैच से पहले कि दोनों पेशावर और लाहौर वाइट्स की टीमों के मिडिल या लोअर मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुए हैं, ऊपर से ही रन हो रहे हैं. क्या ये वजह हो सकती है कि इतनी ज़्यादा आउटिंग्स नहीं हुई हैं मिडिल ऑर्डर की? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्पेशली ऊपर से ओपनर ही रन्स कर रहे थे, और इस मैच में नीचे पारी आई है तो वो उमर अकमल और साद खान खेल रहे थे, लेकिन उमर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन स्पेशली उन्होंने जो बॉलिंग की है वो अच्छी बॉलिंग की है. क्या वजह आपको दिखती है? 137 ऑब्वियसली थोड़ा सा बिलो पार स्कोर था, लेकिन बॉलिंग में क्या गलतियाँ हुई हैं? जी, बॉलिंग में गलतियाँ ये हुई कि फर्स्ट 6 ओवर्स में हमें विकेट्स लेनी थी, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट 6 ओवर में रन्स हो गए हैं. स्पेशली जैसे साहबजादा फरहान और हारिस खेले हैं, मैं मुबारकबाद उनको पेश करता हूँ, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैच के अंदर कि हम ये गलतियाँ ना करें. चलिए, 6 मैच और हैं. गुड लक टू यू. थैंक यू. Saad Naseem, the captain of Lahore Whites. Now I'll call Iftikhar Ahmed, the captain of the winning side of Peshawar. Iftikhar, आप टीम को ज्वाइन किया और आपने उनको अपने तरीके पे लगा दिया, आते ही ख़त्म करना है मैच जल्दी. जी बिल्कुल, जिस तरह हमारा यही है कि ब्रांडेड क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि आजकल दौर यही है, क्योंकि आपने T20 में 200 के ऊपर के देखना भी है और स्ट्राइक रेट को भी देखना है. तो मैं लड़कों से यही बात करता हूँ कि आप लोग ना डरो आउट से, जाके अपना खुला खेलो, और क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान को यही ज़रूरत है कि हम 200 प्लस के रन्स करें और 200 प्लस के रन को चेस करें. मिड इनिंग्स में जब 137 का टारगेट आया तो क्या इंस्ट्रक्शंस थी आपकी ओपनर्स के लिए? इतना ही जल्दी ख़त्म करना है या अपना गेम खेलें? नहीं, यही है कि आप जाके अपने खुला गेम खेलो, क्योंकि वही बात कि आपने दुनिया के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, क्योंकि टॉप की टीमें, दुनिया की सारे टॉप की टीमें T20 में 200 के ऊपर से रन्स चेस भी करते और कर भी दे. तो यहाँ पे हमारा यही स्ट्रेटजी है कि आप जाके खुला खेलना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है. मैंने अभी साथ से भी यही बात की, आपका टॉप ऑर्डर, उनका भी टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था. कहीं आपको एज कप्तान ये आता है माइंड में कि मिडिल ऑर्डर की अभी तक बारी आई नहीं है कि इसी ऐसे क्रंच मैच में ना पड़ जाएगा मुश्किल? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने नबी गुल को थोड़ा आगे भेज दिया कि उसके बल्ले में थोड़ा बॉल आए, क्योंकि एज ए बैट्समैन आप बैठते हो और सिर्फ आपकी बारी नहीं आती, तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपका फॉर्म थोड़ा 19-20 हो जाता है. हाँ,
तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे मिडल के ऑर्डर के बैट्समैन हैं और ऊपर से साहबजादा फरहान और हारिस कर रहे, तो वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए, मुबारकबाद आपको गेम जीतने की और आगे भी गुड लक। थैंक यू। Iftikhar Ahmed, the captain of Peshawar region, they win the match by 7 wickets. Don't go away because we got another big encounter. Karachi Whites versus Lahore Blues lined up, and it's not far away. सब कुछ ठीक और तैयार है पेशावर के चेस के लिए। सारे इसके नारे बुलंद हो रहे थे और उसमें खैर मकदम कहा है। आगे खेला, आवाज तो सुनिए। Farhan brings up his 15 style. This one shifting across, slot sweeping it over square leg. You see that? It's in the air and gone. उठा दिया है गेंद को, कैच को मुकम्मल कर लिया साद खान ने। लेकिन इफ्तिखार ने सबको भरपूर जवाब दिया विनिंग स्ट्रोक के लिए।